morning to one and all present here. I, Samriddhi Singh, core member of the CASMA cell. And I, Shifa, member of Casino Cell, welcome you all on this webinar. CASMA, the CACSCMA guidance cell at Mata Sundari College for Women, is an initiative by the IQAC designed to offer mentorship and support to students pursuing CA, CS, and CMA. This initiative aims to empower students with the resources and guidance they need to succeed in their professional journeys. The Company Secretary course is a professional program that equips individuals with the skills and knowledge necessary to manage corporate governance, compliance, and legal affairs within organizations, making them integral to the management and strategic decision making processes. True leadership is about creating opportunities for others to excel and grow. Our principal professor Harpreet Kaur firmly believes that students are the cornerstone of any educational institution. Her visionary approach has been instrumental in shaping a culture of excellence, collaboration, and innovation. Ma'am continues to be a guiding force and a source of inspiration for all. Ma'am could not join us today, but her good wishes are always there with us. Thank you, ma'am, for everything. I would also like to welcome Professor Lokesh Kumar Gupta, sir, the director of IQAC, who has always directed each one of us patiently in all the tasks and helped us achieve them successfully. We sincerely appreciate constant guidance and encouragement and support of our teachers. Thank you, teachers. I would like to extend a warm welcome to Dr. Manpreet Kaur, Secretary of CASMA, who has always been a support system and torchbearer for us. Thank you, ma'am, for gracing us with your presence this morning. I would also like to welcome Dr. Harshmita Kaur and Ms. Kamna Virmani, esteemed member of CASMA. We are truly grateful for their expertise and support. We are honored to have Mr. Chirag Agarwal, the All India Rank 1 holder in the Company Secretary examinations, who will share his expertise and insights with the aspiring CS professionals in our webinar. Mr. Chirag is pursuing BCom LLB honors from St. Xavier's University, Kolkata, in progress with CGPA of 8.54 and is in his final year. Professional qualifications include Company Secretary, being All India Rank 1 in Professional and Executive and All India Rank 3rd holder in Foundation CS course. Mr. Chirag Agrawal have gained practical experience through internships at leading law firms, where he was engaged in drafting legal documents, concluding research, and participating in court visits. Notable internships include Argus Partners and Khaitan and Company. Mr. Chirag Agrawal will provide invaluable insights during the webinar, drawing from his experience as the All India Rank 1 holder in the Company Secretary examinations. He will share effective strategies for exam preparations, practical tips for mastering complex subjects in corporate and commercial law, and guidance on navigating the challenges faced by CS aspirants. I would now like to hand over the virtual mic to Mr. Chirag Agarwal. Thank you so much, sir. Let's start with the questions and answers. I'd like Samriddhi to take over the session now. Before addressing the questions, I would like Professor Lokesh sir to address the audience. थैंक यू समृद्धि इसकी ज़रूरत नहीं थी मैं तो वैसे भी यहाँ पर इग्नू में अभी बहुत वैसे यहाँ पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद और अभिनंदन भी कि आप लोग इस तरह के इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हो लगातार और जो तीनों टीचर्स काम कर रहे हैं इसके लिए डॉक्टर हर्षमिता डॉक्टर कामना विरमानी और मिसेस मनप्रीत हम तीनों का बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हो और बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है और इस समय छुट्टी के दिन बच्चे जुड़े हुए हैं ये भी अच्छी बात है और चिराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अभिनंदन कॉलेज की ओर से IQAC की ओर से हमारे सबकी ओर से कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें आने वाले समय में बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें मैं इस समय ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा आपका फिर एक बार सबका स्वागत बहुत बहुत स्वागत Thank you, sir. We would like to welcome Mr. Chirag Agarwal again. Hello, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yeah. So, firstly, I would like to thank each and every one of you for coming and for providing me this opportunity to share my insights about the course and about various other things connected to the course.
So yeah, and special mention to Vrinda for coordinating everything. Thank you so much. We're honored to have you here. Yes, so we can proceed. Okay, so may I start with the questions? Yeah. Okay, sir. So the first question is, what drives you to be All India Rank 1? What drives me to be All India Rank 1 is, I would say the first thing which made me think to bring an All India rank is in CS Foundation. I secured All India Rank 3. So in that I wasn't prepared mentally, like I was not preparing to get All India rank, but because of the circumstances that the exam was getting postponed again and again, I secured an All India rank. उसके बाद लगा नहीं यार अब तो इसमें ऑल इंडिया रैंक आ ही गया तो बाकी में भी आ ही सकते इजी होगा कोर्स ऐसा कुछ होगा नहीं so I started I thought I didn't even see the syllabus before like commenting but then I made a commitment कि I will bring all India rank 1 not specific all India rank but all India rank 1 I made a public comment so I was like अब commitment कर दिया अब तो करना ही है because I made the commitment to myself so उससे तो पीछे नहीं हटना है It's very nice to hear, sir, that you didn't took it as a challenge, but you enjoyed yeah doing that. Okay, sir. Thank you for the answer. Moving to the next question. What are the basics one need to follow to excel in any professional competitive exam? So the basics in any competitive exam and also in personal life, I would say कि firstly we should be very disciplined. Second, there like we should plan out everything like what we want to achieve rather than कि जो होगा देखा जाएगा वो attitude रहता है हम लोग का. But what is the ultimate thing which you want to achieve, say a particular thing, उसके बाद ही तो हम लोग आगे we will proceed and do the things फिर देखा जाएगा जो होगा and उसके बाद we must be able to present ourselves well, be it in writing, be it while speaking, everything. And most important is respecting everyone, be it your friends, be it your peers, be it your teachers, or anyone. Because when you respect people, they value you, I would say, and they understand you more. And they at the end they will only help you keep motivated to do the things which you want to do. That's right, sir. Absolutely. I agree to this point. Thank you. So, sir, next question which came up from the audience is, how did you manage to give 8 exams consecutively? Yeah, so I would say there were like various things in executive level. I had not only 8 exams, but I had many more exams. And in professional, there was another, I had 9 exams back to back. So executive was during the COVID-19 time. So in that while that time college was going on in the online mode, and because exams were getting deferred, so just before executive exam, I had third semester midterm exam, then second semester end term exam, then third semester end term exam, all back to back. So I had around 21 college papers back to back, followed by CSK exams. Those are 8 exam back to back. So college के exam I was like not more focused on the college aspect because first week तो online हो रहा था. And उसके बाद the thing was it was considering various aspects which were CS and also CS was my main priority at that time because CS का college का exam तो pass हो जाएगा तो भी चलेगा. It was my attitude. बट सीएस के एग्जाम तो निकालना है अच्छे से बिकॉज द कमिटमेंट वाज मेड तो एग्जीक्यूटिव में आई वुड से इट वाज बिट मोर रिलैक्स्ड इवन इफ आई हैड सो मेनी एग्जाम्स बिकॉज पूरा छुट्टी चल रहा था कोविड के वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे तो उतना कोई प्रेशर नहीं था
कि हाँ पढ़ लिए नॉर्मल. आई यूज टू स्टडी 8 to 6 hours a day. एंड एग्जाम के पहले तो मेरा वैसे उतना पढ़ने का मन भी नहीं होता. दिसंबर मंथ तो आई डिडंट स्टडी एट ऑल उतना. हल्का दिन में 4-5 घंटे पढ़ता था, बाकी टाइम खाली सोते रहता था, या कॉलेज के एग्जाम है तो वो देता था. बट इन प्रोफेशनल आई वुड से द थिंग वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो उसमें आई हैड 9 एग्जाम्स एंड इट वाज वेरी हेक्टिक. स्पेशली प्रोफेशनल इज आई वुड से मोर ऑफ theoretical aspect. Like ज्यादा उसमें learning का things है, and I am completely against learning things. तो it was yeah hectic. तो एग्जाम्स के पहले होता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि कॉलेज was our college timing was 10 to 5. Adding the travel time तो ये सब पूरा दिन निकल ही जाता था, उसके बाद जान नहीं बचता था. Hardly I had Saturday and Sunday to study. But yeah, as I said, discipline and all, key, you know your target, what you want to do, what you want to achieve. So if you are disciplined, you will do it however you do it, but you will do what you want to do. Sir, it's very hard to even imagine ourselves at that place. It's very tough. And actually, I'm also a CS parent, so I am also a little worried at how I'm going to handle all that pressure. But yeah, you said it very right. That discipline is the key. Discipline, determination, and hard work. Thank you so much, sir. Moving towards the next question. How to frame a suitable, achievable timetable? I would say timetable is a wrong word to use. Like we have been born and brought up like that you have to frame a timetable, you have to frame a timetable. But timetable कुछ नहीं होता है. Timetable सबसे फालतू चीज है जो नहीं फॉलो करने के लिए बनाया जाता है. You have to prepare a, I would say, work table और या to do list जो बोलते हैं. अब that to do list might take 4 hours also. That might take 8 hours also. वो आपका टाइम टेबल आई वोंट से कि वो टाइम टेबल में जाना चाहिए कि हम 4 घंटा पढ़ेंगे, उसमें जितना पढ़ाई हो, वैसे नहीं. यू नीड टू प्रिपेयर, मेक डेली टारगेट्स कि हाँ आज मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, हाँ आज मेरे को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. वो आप करिए कैसे भी. हो सकता है आपको 2 घंटा में भी हो जाए, या हो सकता है आपको पूरा दिन भी निकल जाए. बट या देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स कि कॉलेज का टाइमिंग है, colleges are there, बहुत जन का काम भी होता है. Many people work and do these professional courses alongside. So yes, वो टाइम टेबल में हो गया कि 9 to 5 ये सब काम कर रहे हैं, वो सब आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट यू हैव बैलेंस टाइम लेफ्ट. ठीक है, आपको दिख रहा है 4 घंटा, उस 4 घंटा में आपको कितना करना है आप वो देखो. यू नीड टू प्रिपेयर अचीवेबल टारगेट. ऐसा नहीं कि मतलब 4 घंटा है तो पर घंटा 10 पेज मान लेते हैं, 4 घंटा 40 पेज पढ़ना है आज. तो वैसे बहुत जन को मैंने करते देखा है, बट वैसे नहीं होता है. हो सकता है एक पेज में आपको 1 मिनट लगे क्योंकि उस पेज में कुछ नहीं है, और हो सकता है उस पेज में आपको 1 घंटा लग जाए क्योंकि ऐसा चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा. तो इट डिपेंड्स, क्योंकि मान लो अगर ऐसे 1 मिनट में एक पेज होने वाला है, 40 पेज पढ़ने का 40 मिनट में पढ़ लिए, तो आप बोलोगे देखो यार मेरा तो 4 घंटा पढ़ने का था, 40 पेज पढ़ने का था 4 घंटा में, वो तो पढ़ लिया, अब खत्म, हटाओ. तो ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू लॉजिकली प्रिपेयर थिंग्स. तो यस, आई एम कम्प्लीटली, आई नेवर प्रिपेयर्ड अ टाइम टेबल माई सेल्फ कि हाँ मेरे को इतना से इतना करना है, ये करना है, वो करना है. ऐसा कुछ नहीं. मेरा ये था कि हाँ आज मेरे को इतना क्लासेस कंप्लीट करना है. अब सम क्लासेस, एज यू नो, मेनी पीपल टेक कोचिंग, तो कुछ क्लासेस रहते हैं 2 घंटे के, कुछ रहते 1 घंटे के भी रहते हैं, कभी कभी 3 घंटे के भी रहते हैं. बट मेरा था कि मेरे को ये 7-8 क्लास आज कंप्लीट करना है तो करना है. हो सकता है मेरा 4-5 घंटा में भी हो जाए, हो सकता है मेरा 8-9 घंटा में भी हो जाए, बट विथ द प्रोविजो दैट मेरे को वो समझ में आना चाहिए. अगर नहीं समझ में आ रहा, आई विल जस्ट लीव इट एट दैट मोमेंट, क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए कंप्लीट नहीं करना है. That's true, sir. There are students who actually focus more on the duration of their studies rather than the output produced. And that's very truly said, that we need to actually focus on how much output we are producing, even if we are sitting just for 1 hour. Yeah, quality over quantity. Yeah, quality over quantity. I hope that helped the audience. Even it helped me. I'm very happy with the answer. Thank you, sir.
Next question. How do you maintain your college life with CS? सो आई वुड से कि अभी तो मेरा कॉलेज फाइनली खत्म हो गया 5 साल का बहुत लंबा कोर्स था तो कॉलेज इज फाइनली ओवर आई हैव गॉट माई लॉ का डिग्री अभी तो एट दैट टाइम मेंटेनिंग आई वुड से CS was being maintained with college rather than the other way around कि कॉलेज was maintained with CS क्योंकि पूरा दिन तो कॉलेज में ही निकल जाता था सुबह पहले आई यूज टू डू वर्कआउट देन आई वेंट टू कॉलेज देन आई आज घर आते आते 6 साढ़े 6 बज जाता था उसके बाद फिर क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बाई 6 आई हैव टू वेक अप अगेन तो उसके बाद आई हार्डली हैड सी 4 5 आवर्स उसमें मेरे को खाना है उसके बाद आराम करना है थोड़ा तो यू हार्डली यूज टू गेट 1 or 2 hours अ डे उसमें अगर मेरा पढ़ाई हो पाता आई वुड ट्राई टू स्टडी एन आवर और 2 अ डे मैंने बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए कभी कभी भी कॉलेज में रुक के कि कॉलेज में 8 9 बजे तक रुक के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा हूँ वो उसमें फिर भी पढ़ाई हो जाता था मेरा घर आके तो कभी पढ़ाई नहीं होता था 6:30 7 बजे आने के बाद इफ यू हैव गॉट अप एट 6 at the morning and then by 7 p.m. at night you would be drained mentally also so yes it was tough but मैं क्या करता था कॉलेज में एक दिन जैसे हम लोग का क्लासेस कम रहता था देयर वर 3 क्लासेस से तो मैं उस दिन छुट्टी मार लेता था कि बोलो हटाओ यार 3 दिन 3 पीरियड अटेंडेंस मिले ठीक है नहीं मिले ठीक है बाकी 2 दिन सैटरडे संडे आई हैड सो दीज 3 days आई यूज टू स्टडी से 10 hours a day लाइक क्योंकि मेरे को एंड फिर मेरा क्लासेस देखने का हैबिट था मैं 2x या 1.7x स्पीड में दिखता था तो आई यूज टू स्टडी वैसे कि मैनेज करना है कैसे भी देयर वर थिंग उसके बाद लाइक आई वुड से प्रोफेशनल मेरा एकदम अलग था एग्जीक्यूटिव एकदम अलग था लाइक 2 कंप्लीट सेपरेट थिंग्स एग्जीक्यूटिव पूरा ऑनलाइन था कोविड था तो आप लोग समझ सकते हो फुली कि कैसे निकला है वो तो बस कॉलेज का क्योंकि क्लासेस तो पर्सनली स्पीकिंग उतना नहीं सुनते थे एंड उसके बाद तो उसमें खाली CS का पर डे होते थे तो एग्जीक्यूटिव के वक्त होता मैं 2 महीना के लिए पढ़ा जून जुलाई मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया फिर अगस्त में पेपर देख के रियलाइज हुआ कुछ नहीं आता कि पढ़ना पड़ेगा वापस तो इसलिए तो मेरा एग्जीक्यूटिव वैसे निकला बट प्रोफेशनल में फिर मेरा 2 महीना तो रिजल्ट टाइम फरवरी में रिजल्ट आता है तो वैसे निकल गया था फिर मार्च में मेरा एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद जुलाई में आई हैड द EDP जो होता है वो था उसके बाद फिर कॉलेज का इवेंट्स ये सब आई वाज कनेक्टेड लाइक आई वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स सोसाइटी बैक देन तो उस वक्त कॉलेज के इतने इवेंट्स है सब मैनेज करना कभी कुछ पोस्ट जाना है कभी कुछ इवेंट होना है इससे कोऑर्डिनेट करना उससे कोऑर्डिनेट करना देयर वर थाउजेंड्स ऑफ थिंग प्रोफेशनल में बट व्हाट द अल्टीमेट थिंग वाज एट द बैक ऑफ द माइंड मेरा ये है कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है नॉट इवन अ सिंगल डे आई थॉट कि भाई पास हो जाए उतना काफी है भाई बस एग्जाम निकल जाए ये सब आई नेवर थॉट ऐसा भी नहीं कि भाई ऑल इंडिया रैंक लाना है मेरा था कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 ही लाना है सो आई वॉज completely determined in that and I had a habit say while doing the exercise or while just random anytime I would used to say to myself that I will get AIR1 मतलब I used to manifest that I would just imagine the scene कि हाँ रैंक आएगा तो कैसा लगेगा ये कैसा होगा वो कैसा होगा so manifestation and also I would say I would repeat it to myself जैसे 3 dates में बोलता है ना all is well so वैसे I was like हाँ you can and you will do it तो that was the thing कि हाँ खुद को दिलासा देना पड़ेगा कि आप कर सकते हो Yes, so but I just had one curious question if you allow me to ask. yes please. I'll proceed. So did your friends ever force you to like go for parties and celebrations like for gatherings because it's very common people say that no our friends are taunting us that we never go outside and we are just into our books so did you ever face that tension? So I would say there are various things to this. First point is be it good or bad, I don't have many friends. Like I have very less friends. Those who understand me because I don't make people friend
who don't understand me. I would on their face tell that you are a acquaintance to me, you are not a friend. He feels bad, good, I don't care. Because जो दोस्त होगा वो समझेगा आपको. Like जो दोस्त लोग होते हैं they will want you to proceed ahead. कुछ कुछ होते हैं जो जलते हैं वो I wouldn't say they are a really good friend. जो जलते हैं वो दोस्त नहीं है. मेरा सिंपल लॉजिक है भाई मेरा दोस्त आगे बढ़े मैं खुश हूँ. क्या अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊँ मेरा दोस्त है ना वो कमाएगा वो खर्चा करेगा हम लोग ऐश करेंगे. So आई आई एम ऑलवेज एंड मेरे फ्रेंड ये थे कि कभी मैं गलती से इंस्टाग्राम में या फेसबुक में वो लोग कोई पोस्ट में टैग कर दिए मेरे को ऐसे कोई रैंडम मीम में टैग किए मैं कमेंट में फिर हम लोग एक कमेंट में ही हम लोग 1-2 मिनट बात करने लगते तो उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आता है भाई तू जाके पढ़ाई कर टाइम पास मत कर इधर. सो ऐसा टाइप का कमेंट आ जाता था. तो उसके बाद एंड वी फ्रेंड्स आर नॉट इन द हैबिट ऑफ गोइंग आउट एवरी डे पार्टिंग ऑल द टाइम. ऐसा नहीं हम लोग मैं ऐसे जनरली भी 3-4 महीने में एक बार मिलते हैं बस उसमें एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एट होम कि हाँ घर पे मिलके हम लोग अपना मस्ती कर लेते वैसा टाइप जो मंगाना घर पे मंगो. तो हम लोग का ऐसे आदत भी नहीं था कि वी विल गो समवेयर. एंड फिर रहा बात कॉलेज का. कॉलेज में हम लोग 10 से 5 थे ऐसे कॉलेज के जो 2-3 फ्रेंड थे 10 से 5 तो ऐसे ही कॉलेज में रहते और कितना शक्ल देखेंगे एक दूसरे का. तो वैसे ही निकल जाता था. एंड कॉलेज में हम लोग को हाँ सो इंटर ड्यूरिंग द प्रोफेशनल एग्जाम 10 से 5 हम लोग क्लासेस चल रहे हैं. उसके बाद बहुत गंदा हैबिट था हम लोग कभी कभी तो क्लास बंक करके भी हम लोग वॉलीबॉल खेलने चले जाया करते थे. 6-7 बजे तक हम लोग कॉलेज में वॉलीबॉल खेल रहे हैं. एग्जाम गया खेल लेने अपनी मस्ती में लगे हुए हम लोग. तो ये उसके बाद फिर कॉलेज के फ्रेंड नेवर फोर्स्ड उसके 2-3 जो थे उसके बाद फिर बाकी जो फ्रेंड्स थे हम लोग उनसे उतना मिलते भी नहीं थे एंड दे आल्सो मोटिवेटेड कि भाई तू पढ़ाई कर पढ़ाई कर. तो यस दैट वे माय फ्रेंड्स वर गुड सपोर्टिव वेरी सपोर्टिव. ना उन लोग को उतना जाना पसंद है कि मतलब एवरीडे मिले ये सब वैसा कुछ नहीं. तो या फ्रेंड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड एज ए सेड इसमें एक और चीज आ जाता है कि इफ यू आर कॉन्फिडेंट विद इन कि अगर आप खुद खुद कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो सामने वाले को भी यकीन होगा कि आप ये कर सकते हो. तो अगर जैसे मेरे को खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं रैंक 1 नहीं लाऊंगा मींस रैंक 1 नहीं ला सकता और मैं ऐसे थोड़ा डाइसी वे में बोलता भाई रैंक 1 ट्राई करना. एक फ्रेंड हो गए जो बोलेंगे भाई तेरे बस का नहीं है तू रहने दे छोड़ ये सब. और एक बोलेंगे हाँ कर सकते हैं. इफ यू आर कॉन्फिडेंट विद इन फ्रेंड लोग ये बोलेंगे हाँ भाई तुम लाएगा तुम ला. हम लोग का भी हम लोग भी बोल पाएंगे भाई हम रैंक 1 का दोस्त है ये है वो है. एंड बाकी बोलेंगे नहीं यार छोड़ दे तुम क्योंकि इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट खुद से तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आप पे. That's actually right. So company matters a lot. And especially when we join colleges, we meet a lot of new people and they actually act as a distraction. You know, we want to join college societies, we want to take part in extracurriculars and you know that momos party. We all want to join that. But we need to control ourselves. I would say no, you don't control yourself. I would just say that because the college time is also a time that you won't ever get back. Yeah. तो उसमें मस्ती करने का टाइम है. कॉलेज के ड्यूरेशन में थोड़ा मस्ती करो. बाकी यू हैव वीकेंड्स उसमें भी स्टडी कर सकते हैं. तो बिकॉज देखिए आप लोग का फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज देयर वुड बी अ ग्रुप ऑफ से 10 people 10-12 people and लास्ट ईयर तक आते आते वो 2-3 में रह जाएंगे. There will be a lot of people parting away. You will feel bad also, and but enjoy each and every moment. जितना मस्ती कर सकते करो, because you never know कि कब क्या होने वाला है. Anyways, life is very short. Anything can happen anytime. So आप ये सोचोगे यार अभी थोड़ा मेहनत कर लेता बाद में मस्ती करेंगे. वैसे नहीं होगा. मस्ती भी करो मेहनत दोनों साथ साथ क्यों नहीं कर सकते. जितना हो सकता है साथ में करो. आई समटाइम्स रिग्रेट कि हाँ मैंने पहले ये नहीं किया वो नहीं किया. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सोसाइटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड जस्ट से फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस क्योंकि टिल क्लास 12 बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज
आई वॉज अ कम्प्लीटली सेपरेट पर्सन जो किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकता था. So, day one of the college मेरा ऐसा हाल था. मैं in front of only 28 people. I couldn't even say my name. तो सबके सामने खड़ा करके मैं अपना नाम तक नहीं बोल पा रहा था. उसके बाद from that till today I can speak in front of thousands of people. So that's a transformation which in which societies and events they play a very important role. They help in your personal development. So I please don't avoid that at all. वो बहुत जरूरी है बिकॉज खाली आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं पर्सनल डेवलपमेंट का भी जरूरत है क्योंकि आगे यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ. सो या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Finding balance is the key. Right. या Okay. Moving on to the next question, sir. Is self-study sufficient to crack CS examinations, or one should take coaching? What are your views on this? I would say coach self study is also okay for people who always used to self study कि उनको हाँ देख के दे आर लाइक इसमें डिसिप्लिन मैटर्स अ लॉट अगेन कि क्योंकि जो सेल्फ स्टडी में ना बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है कि हाँ ये करना होगा. हम लोग को खुद शांत दिमाग से बैठ के समझना होगा सब बिकॉज देयर इज नो वन गाइडिंग यू आउट देयर लाइक ऑन एन एवरीडे बेसिस कि हाँ रोज आपको गाइड कर रहे कोई ना कोई. वैसा नहीं होगा. तो उसमें आई नेवर ट्राइड सेल्फ स्टडी इन प्रोफेशनल एग्जाम्स. रिस्क ही नहीं लिया मैं. सो आई वाज ओवरसीइंग रिस्क इन दैट केस क्योंकि मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि कोचिंग ले लेंगे तो एक हम लोग जो क्लासेस करते हैं इससे मैं लैंग्वेज एक पढ़ रहा हूँ वो मैं लैंग्वेज मेरे को समझ में आ जाएगा. हो सकता है उस लैंग्वेज के पीछे और 100 चीजें हो कुछ ना कुछ अलग पर्सपेक्टिव हो. देयर माइट बी हिस्ट्री बिहाइंड दैट. So coaching sometimes help you understand even greater details. But उसके बाद भी आज के डेट में I would say like as of today बहुत बार लगता है कि कोचिंग नहीं भी हो चलेगा बिकॉज YouTube is flooded with videos now. कुछ ना कुछ मैराथन कुछ ना पहले हम लोग के टाइम पे बस एक मैराथन नाम का चीज होता था. नहीं, हम लोग के टाइम ऐसे बोल रहा हूँ कि बहुत पुराना हो गया लाइक इन द पास्ट 1 or 2 years थिंग्स हैव डेवलप्ड एक्सपोनेंशियली. सो हम लोग के टाइम पे उतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था रिविजन्स एंड होते भी थे रिविजन तो एग्जाम के जस्ट 2-3 वीक्स पहले जो पब्लिकली अवेलेबल. वो भी बहुत बार होता कि लाइव ही अटेंड करना पड़ेगा उसके बाद अनलिस्टेड हो जाएगा ये वो. बहुत झमेला होता था. आज के डेट पे देखा जाए इतना डिटेल्ड मैराथन होता है इतना डिटेल्ड रिवीजन होता है बल्कि कुछ कुछ अकेडमीज के लाइक कुछ कुछ कोचिंग्स के ऐसे लगता है कि उन लोग का मैराथन या रिवीजन ही डिटेल्ड क्लासेस है बहुत सारे. तो इतना डिटेल में बढ़ा रही है उसके बाद जरूरत नहीं. सो इफ यू आई वुड से कि अगर आपका सेल्फ स्टडी आपको लगता है सेल्फ स्टडी से यू कैन डू आज तक हमेशा सेल्फ स्टडी से किए हो यू कैन जस्ट एक्सप्लोर यूट्यूब ऑल्सो वंस की हाँ रिविजन ये सब कैसे क्या हो रहा है आपको थोड़ा समझने मिल जाएगा. उससे हो जाना चाहिए. एंड इफ यू लाइक कि कोचिंग चाहिए कि आपका थोड़ा माइंड चंचल है इधर जाता है उधर जाता है तो कोचिंग ले लो. बट फिर कोचिंग में भी 2 चीजें यू आर टेकिंग ऑफलाइन क्लासेस यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. ऑफलाइन में एक दिक्कत है यू हैव टू मैच द स्पीड ऑफ द प्रोफेसर. अगर आप बहुत फास्ट पढ़ते हो तो भी आपको स्लो पढ़ना होगा एंड बहुत स्लो पढ़ते हो तो आपको बहुत फास्ट पढ़ना होगा. उसके बाद ऑफलाइन कोचिंग में रहते हैं बहुत सारे आपके और भी देयर आर आई वुड से बैचमेट्स तो उनके साथ भी आपको डील करना है. उन लोग भी बोलेंगे आज थोड़ा इधर चलते हैं उधर चलते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. मेरे केस में था तो मेरे को कि आई यूज टू वॉच वीडियोज एट 1.7 or 2x स्पीड. तो मेरे को स्पीड मैटर कर बिकॉज ऑफलाइन में उस कोचिंग के शेड्यूल के हिसाब से कंप्लीट होगा क्लासेस. ऑनलाइन में मेरे शेड्यूल के हिसाब से कंप्लीट होगा क्लासेस. तो आई कैन कंप्लीट इट अर्ली. मेरे को 10 बार देख एंड आप लोग जिस ऑनलाइन लो कोचिंग ऑफलाइन लो फैकल्टीज आर देयर टू हेल्प. आप फैकल्टी को मैसेज कर दो मेल कर दो कॉल कर लो. मेरे केस में लकीली मैं कॉल करके इजीली रीच आउट कर सकता था जो भी फैकल्टीज थे
एक फैकल्टी तो जैसे मेरे घर के 5 मिनट्स ही यूज टू से 5 मिनट्स अवे, तो ऐसे ही कुछ होता कि मेरे को आई फेल्ट डिस्ट्रैक्टेड, मेरे को लगता है यार क्यों नहीं, थोड़ा नहीं हो रहा है, आई एम डाउटिंग कि कंप्लीट होगा नहीं होगा, तो मैं बस सर को बोले सर आपके घर आ रहा हूँ एक बार, मेरे को बात करना है, तो जाके बात कर ले, फैकल्टीज आर देयर टू गाइड यू, just need to approach them, and even if you are not taking a coaching from them, मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ फैकल्टीज आर ओपनली अवेलेबल कि हाँ आप उन लोग को मैसेज करो, दे विल गाइड यू। ऐसे मैंने कोई फैकल्टी नहीं देखा कि बोले नहीं तुम मेरा क्लास नहीं लियो तो मैं तुमको गाइड नहीं करूंगा, वैसे मैंने नहीं देखा क्योंकि फाउंडेशन में मैंने कोई क्लासेस नहीं लिया था, यूट्यूब वीडियोस देखा था, यूट्यूब में जो फैकल्टी था उन्होंने नंबर दिया था, तो वो नंबर पे टेक्स्ट करके कॉल करके बात करता था, दे यूज टू बी अवेलेबल, ऐसा कुछ नहीं, बट टेक गाइडेंस फ्रॉम पीपल हु आर देयर टू हेल्प आउट, क्योंकि ये कंप्लीटली अलग कोर्स है, ना कॉलेज में ऐसा कोर्स हो सकता है ना स्कूल में हो सकता है, यू विल नीड सम गाइडेंस इन दीज मैटर्स। That's actually right. So nowadays, facilities are like being provided in great numbers, but it actually depends from student to student who actually can learn well in even pen drive classes. Because I've heard of these. Yeah. Currently coachings are provided pen drive classes, and they are providing even online pen drive offline. So I guess it depends on the capacity of the student how much she can grab. But yeah, exams, I think you should go for coaching because they actually teach us how to write the examination, how to interpret the questions. So yeah, that's And required. also they give the practical aspects, कुछ कुछ recent topics हो रहा है, practical things हो रहा है, से हम लोग का इंसॉल्वेंसी में होता है PUFE ट्रांजैक्शन, प्रेफरेंशियल, अंडर वैल्यू, फ्रॉडुलेंट, एक्सटॉर्शनरी ट्रांजैक्शन, हैवी टर्म्स है, बट वो पढ़ने में बहुत मजा आता है जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आते हैं कि प्रैक्टिकली क्या क्या दिक्कत आता है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। So I would recommend to go with such faculties who can give practical insights also. बुक में जो लिखा हुआ है वो सब पढ़ रहे, अगर आप प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो समझो तो आप एग्जाम में अपना इनपुट्स दे सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अब हम लोग का इनपुट्स मांगा जा रहा है, बुक में जो लिखा हुआ है वो नहीं, खाली वो आंसर गाइडलाइन जो है उसमें बुक का लैंग्वेज है और कहीं पे नहीं, क्योंकि चेक करने वाले भी प्रोफेशनल्स है जो एक्चुअली CS ये सब है, उन लोग ही चेक कर रहे हैं हमारा पेपर्स, ऐसा नहीं है कि रैंडम किसी को भी पकड़ा दिया, बोला भाई तू आ जा इधर, ये ले आंसर शीट मैच कर, अगर एग्जैक्ट लिखा है तो मार्क्स दे वरना मत दे, ऐसा नहीं होता। Right, sir. Completely agree with it. Okay, so should I move to the next question? Okay. So it's yeah, it was a very demanded question actually. As a student who doesn't has commerce background and has given multiple attempts, should he actually prepare for upcoming attempt, and how? If yes. See, यहाँ पे कॉमर्स से मतलब नहीं है, साइंस से मतलब नहीं है, आर्ट से मतलब नहीं है, CS is more of like CS is completely law I would say, Hmm. कॉमर्स का थोड़ा एस्पेक्ट आता है अकाउंटिंग में, अब हो सकता है थोड़ा साइंस का भी एस्पेक्ट आ जाए, थोड़ा आर्ट्स का भी एस्पेक्ट आ जाए, 11th 12th तो जो ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो है वो आपको खाली 12th तक ही मदद करता है, उसके बाद मदद नहीं कर रहा है एज सच, कि आप अगर 12 में साइंस 12 तक साइंस लेके पढ़े हो तो उसके बाद कोई बीकॉम नहीं लेता है क्या, तो इट माइट टेक सम टाइम, यू माइट फेस डिफिकल्टी इन द बिगनिंग, नहीं समझ में आए थोड़ा, बट ओवर द पीरियड समझ में आ जाएगा। आपने जब 10 तक हम लोग का से हम लोग के केस में 10 तक हम लोग का सारे सब्जेक्ट्स होते थे, उसके बाद वी गॉट अ चॉइस कि आपको साइंस लेना, कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना, तो मेरा तो सीधा ये था भाई साइंस, और साइंस मेरे पल्ले का है ही नहीं, आर्ट्स तो छोड़ दो, बहुत रट्टा मारना होगा, ये सब वो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब कौन इतना वो सब पढ़ेगा, अपना तो पॉलिटिकल साइंस ये सब कुछ होना नहीं है, तो कॉमर्स ही इतना ठीक है, ऐसा भी मारवाड़ी है तो धंधे की बात समझ में आती तो उसके इसलिए कॉमर्स उसमें कोई सेकंड चॉइस नहीं था, बट
बहुत लोग होते हैं जो साइंस ये सब लेते हैं बट उसके बाद भी बीकॉम लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा। हो सकता है इट माइट टेक 10 years instead of 8 years for you to understand, but you will understand unless you change your mentality. अगर आप मेंटालिटी ऐसा होगा कि भाई अब हम तो साइंस वाले, मेरे को कैसे समझ में आएगा ये सब, नहीं आएगा समझ में अगर आप ऐसा मेंटालिटी रखोगे। हम लोग अगर 10 तक बोलते कि 10 में से अगर मैंने 10 तक पूरा पढ़ के उसके बाद 11 में साइंस लिया होता, मैं वैसा मेंटालिटी रख के रखा था कि मेरे को साइंस नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने साइंस लेने का सोचा भी नहीं। बट अगर मैं सोचता कि हाँ मुझे साइंस समझ में आ सकता अगर ध्यान से पढूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं समझता ही नहीं। वी लर्न ओवर टाइम। फर्स्ट टाइम हम लोग एबीसीडी भी जब सीखे होंगे तब नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई ए क्या होता है, बी क्या होता है। उसके बाद ग्रेजुअली आजकल लगता है ए क्या है, बी क्या ही है, ये सब एबीसीडी तो है। तो थोड़ा टाइम लगेगा बट यू विल अंडरस्टैंड। एंड रहा बात कि हम लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे ही चुके हो तो आपको मतलब समझ में धीरे धीरे यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड ना कि हो क्या रहा है एग्जाम में, बोलना क्या चाह रहे हैं, सब्जेक्ट में बात क्या हो रहा है, यू विल अंडरस्टैंड। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा चाहे वो साइंस बैकग्राउंड ले रखे हो बट फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों का क्लियर हो रहा है। ऐसा कुछ, इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी। अगर आप ऐसा मेंटालिटी बना के रखोगे कि मुझे नहीं समझ में आ सकता ये चीज, नहीं आएगा। जस्ट अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है, पेशेंटली पढ़ो, थोड़ा ज्यादा टाइम लो। ठीक है, मैं तो खुद बोल रहा, मैं कभी कभी एक पेज पे एक एक घंटा लेके बैठा रहता था। हो सकता है दो तीन एक एक हफ्ता भी निकाल देता था कि भाई मेरे को ये पेज समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। बट लर्न करने मत बैठना। अगर लर्न करने बैठोगे तो भूल जाओगे। समझने का कोशिश करो कि हो क्या रहा है, लाइक हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, फ्लो क्या हो रहा है। तो अगर आप वंस यू गेट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में आराम से निकल जाएगा, बीट द फर्स्ट अटेम्प्ट और बीट द नेक्स्ट अटेम्प्ट। आप समझ के पढ़ना लगोगे ना तो आपका थिंग्स वुड बिकम वेरी इजियर। Yes, actually, I guess only the will matters. हम्म। Even I was a non-math student in class 11th and 12th, and right now I'm preparing for my CA foundation, and it has a lot of maths. So it's not that I'm facing any difficulties. हम्म। At this time, I know that it's my career, and I have that will to learn maths, even if I haven't like had any connection with maths since fifth class. Else, I've never liked maths, but now, yeah, it's actually more of like I need to crack this exam, so I have to learn this subject. See, I would give an example. आज हम लोग का कोई भी कोर्स कंप्लीट हो गया, से सीए कंप्लीट हो गया, सीएस कंप्लीट हो गया, एंड से यू जॉइन अ आईटी कंपनी Hmm. या यू जॉइन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ऑयल ऑयल एंड गैस कंपनी, ये सब। वहाँ पे बिजनेस में अलग अलग टेक्निकल टर्म्स बहुत होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑल्सो। तब हम लोग मैनेज करते हैं ना समझने का कि हाँ ये बिजनेस में ऐसे, ये ऐसे क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये वैसे क्यों हो रहा है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। वो हम लोग के लिए कम्प्लीटली अलग होगा। आईटी में से हो सकता है बहुत सारा कंप्यूटर स्किल्स भी आपको समझने का जरूरत हो, कंप्यूटर लैंग्वेज आपको समझने का जरूरत हो, वो आप समझोगे बिकॉज दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। यू विल टेक टाइम, इन्वेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वैसे ही वो है कि हो आज हम लोग हो सकता है एक चीज अवॉइड कर रहे हो बट डाउन द लाइन हम लोग को हो सकता है उसी में काम करना पड़ जाए। इफ आई से जॉइन साइंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को साइंस का बहुत चीज समझना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, बट यस आई विल अंडरस्टैंड दैट ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग मैथ्स आते हैं, मैथ्स नहीं आया या कुछ नहीं आया तो हम लोग को कभी जिंदगी में काम ही नहीं पड़ेगा। उस पर्टिकुलर फील्ड में वो कभी भी काम पड़ सकता है। आप आज नहीं समझे, हो सकता है कल समझना पड़ सकता है। Yes, sir. Agreed. Okay, sir. Next question. Sir, did you followed any notes making strategy? Any particular one? Yeah, so I had a habit of preparing notes. मेरे को लाइक जब तक खुद का नोट्स नहीं बना लेना सेटिस्फैक्शन एकदम नहीं मिलता था।
अगर हम से जो कोचिंग ले रखा था उसमें भी सर ने नोट्स दे दिया, और उसके बाद आई हैड अ हैबिट कि सर ने तो यहाँ तक जो पढ़ाया उसका नोट्स दे दिया। आई यूज टू गो थ्रू द इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल वंस। मेरे को जहाँ जहाँ जो लगता था कि हाँ ये भी इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो भी सर ने ये मिस कर दिया नोट्स में, ने सर के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं था बट मेरे को लग रहा है इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आई यूज टू कीप ऑन एडिंग दैट थिंग्स इन माई नोट्स। टॉपिक बाय टॉपिक मैं ऐड करता था, तो ऐसा नहीं मेरा खाली कोचिंग का एक नोट नहीं बना था, उसी नोट में मैं सब चीज मिक्स कर देता था कि हाँ इसमें मेरा भी इनपुट आ गया। अब सर अगर कुछ समझा रहे, नोट्स देते वक्त वो नहीं बोले हो बट समझाते वक्त उन्होंने बोला तो मैं वो भी लिख देता था। आई हैड अ हैबिट कि नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है, टाइम लगता है, बट वंस इट इज मेड इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो हम लोग का जैसे सीएस प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट था सेक्रेटरियल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, ये सब्जेक्ट था। इट कंसिस्टेड ऑफ अराउंड 21 चैप्टर्स। 500-600 पन्ने का बुक था, मैं नोट्स बना के रख लिया, एंड उस नोट से जस्ट द डे बिफोर एग्जाम आई कुड रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी टॉपिक छूटा हो, एंटायर सब्जेक्ट मेरा रिवाइज हो गया था 4 to 5 आवर्स में। सो इट इज लाइक नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं बिकॉज आप उसमें अपना, नोट्स में ऐसा नहीं कि बुक का लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर दिए, नोट्स में अपना अंडरस्टैंडिंग इनकॉर्पोरेट करना है। क्योंकि आप, अब मैं बहुत चीज नोट्स में मेरा आदत था मैं हिंदी में लिख देता था, सर कुछ बोल रहे हिंदी में लिख रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा होता है हिंदी में थोड़ा अपनापन है, वो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। इफ वी से कि कीप द एंटायर सेशन इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में क्या होता है, लोग नेटफ्लिक्स ये सब में भी क्या करते हैं, इंग्लिश में चल रहे हैं, नीचे लोग कैप्शन पढ़ पढ़ के फॉलो अप करते। वो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा सुन के वो लोग समझ लिए, वी हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग द कैप्शन समटाइम ऑल्सो। कुछ लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, वो हम लोग, वो अंग्रेज लोग हैं, हम लोग प्रॉपर इंडियंस हैं, तो हम लोग को थोड़ा हिंदी में अपनापन लगता है, या योर रीजनल लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप लिखो, क्योंकि आपको वो टॉपिक समझना है। अगर आप समझ लिए उसके बाद आप एग्जाम में लिख सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ जाए। तो वही मेन सबसे इंपॉर्टेंट था कि नोट्स में सारा अंडरस्टैंडिंग लिखना है। और कोई कोई सब्जेक्ट होता कि चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसमें मैं नोट्स कभी कभी नहीं बनाता था, क्योंकि देखता था भाई 100 पेज का चैप्टर, नोट्स बनाने में हालत खराब हो जाएगा, नहीं बनेगा। आई यूज टू अवॉइड दैट, बट फिर मैं बुक में हाईलाइट कर देता था कि बुक में हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये करना है, अंडरलाइन कर करके छोड़ देता। थोड़ा मेहनत लिखने का मेहनत बचता, बट फिर नोट्स बनाने से एक और फायदा कि और यू हैव गेट अ राइटिंग हैबिट। आई हैड अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी चैप्टर, कुछ कुछ चैप्टर छोड़ के कि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो बार बार हम लोग लिखेंगे। एग्जाम में राइटिंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वरना आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक वैसा रहता। उसके बाद कुछ कुछ आंसर्स बहुत बड़े होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, तो आई यूज टू फ्रेम न्यूमोनिक्स, टीचर्स भी बहुत बार न्यूमोनिक्स ये सब पढ़ाते हैं। तो बेसिक कंपनी लॉ में सबसे एक वो आता है कि बेसिक कंपनी लॉ में आता है कि एक की से हम लोग का पढ़ते थे कि ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है। आई थिंक सीए फाउंडेशन में भी आप पढ़े होंगे, एवरी मेनी ऑफ यू हैव रेड। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस की जो रेगुलर मैटर एजीएम ये सब में डील होते हैं, तो हम लोग का वो सिंपल शॉर्ट फॉर्म है उसका अड्डा। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट फॉर्म, यू अड्डा बोलेंगे हम लोग कोई भी प्रोफेशनल समझ जाएगा कि हाँ अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स रिपोर्ट ये सब हो गया, पहला डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हो गया, उसके बाद फिर एक हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ दोज रिटायरिंग, ये सब हो गया, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये 4 हो गए। इतना 4 बड़ा बड़ा पॉइंट है, बट एक इतना सा शॉर्ट फॉर्म अड्डा। अड्डा इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो ऐसे निमोनिक्स से ना बहुत चीज याद हो जाता है, कुछ कुछ निमोनिक्स नहीं बन सकते। गो विथ मेक अ फ्लो कि हाँ इसके बाद तो यही होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए। कि लॉ में बोलता कि केस का प्रोसेस क्या है पूरा, कि मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको लॉजिकली सोचो कि भाई इसके बाद तो यही होना चाहिए। सबसे पहले तो उसको एक सामने वाले को कुछ बताना होगा कि ऐसे ऐसे हुआ है,
ऐसे करके एक मेक अ प्रोसेस फ्लो, एक चार्ट टाइप बना लो, ड्राइंग बना लो थोड़ा, नोट्स में ये सब इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करो। एंड नोट्स में ऐसा भी नहीं कि पैराग्राफ पैराग्राफ लिख दिए, स्कूल तक में लिखते थे ठीक है, वो भी स्कूल में भी हम लोग 10 तक ही लिखते थे मैक्सिमम, 11 12 में तो आज तक मैंने पैराग्राफ फॉर्म में तो कुछ नोट्स लिखा ही नहीं होगा। तो पॉइंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेक फ्लो चार्ट्स, कुछ भी है फ्लो चार्ट बनाते रहो। इट मेक्स योर रिविजन टाइम ऑल्सो वेरी स्मॉल। जो आप पैराग्राफ पढ़ने में 15 मिनट लगाते हो वो चार्ट से आप हो सकते हैं 1 मिनट में पढ़ लो। यू हैव सेव 14 मिनट्स। वो चार्ट बनाने में बहुत दिमाग लगाना पड़ा होगा, बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट, नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। Actually, nowadays many people go for ready-made notes also. वो बहुत खराब है। वो that बहुत ज़्यादा. I don't understand why. How can a student study from someone else's notes? They prepared it with their own mindset. How I can't even understand what other person has written. हाँ वही तो, जैसे हम बहुत बार ये पढ़ के लगता है, जैसे गोलमाल मूवी में बोलता है ना, ये तो कुछ अरेबिक में लिखा हुआ है, तो वो पढ़ के वैसे ही लगता है ये तो अरेबिक में कहना क्या चाहते हो, वैसा टाइप हो जाता है, नहीं समझ में आता। और खुद का भाई खुद का लिखा हुआ होता है ना, कि खुद का लिखा हुआ खुद को ही समझ में आ सकता है। Yeah, and actually, I felt relatable at that Hindi point also. Even I'm studying economics, so my economics teacher has given an abbreviation Pyari Preeto for factors for demand. So it it actually helps us to remember, and that's Yeah. pretty funny and actually I'll say familiar way to learn things. हम्म, We don't feel it as a pressure, but we do it with a lot of enjoyment. yes, न्यूमरिक्स मेक थिंग्स फन, Yeah, it's क्योंकि ऐसे ये सब छोटे छोटी चीजें ना याद रह जाते हैं हमेशा। wow. Okay, sir. Thank you for the answer. So the next question is, a lot of people actually don't know about the CS profession. Yeah, I have seen that they are more like it. Actually, I've seen students who are in dilemma that should we pursue CS or not? Does it have any scope? Because people are not giving it enough recognition. Hmm. इसमें आई वुड से कि कुछ महीने या कुछ साल पहले तक हम लोग को सिर्फ जेप्टो के बारे में नहीं पता था, उसके लाइक कुछ पहले हम लोग को स्विगी के बारे में, जोमेटो के बारे में ये सब नहीं पता था। तो इसका मतलब ये नहीं दैट इट वाज नॉट, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आज तो आजकल जिंदगी उसी के भरोसे चल रही है, ब्लिंकिट नहीं होता तो हम लोग का क्या होता। तो ये सब ये, बट स्टार्टिंग में टेक्स टाइम। आज भी अगर मैं गूगल में एक बार सीएस सर्च करूं या से चैट जीपीटी में, सीएस का फुल फॉर्म दे विल टेक इट एज कंप्यूटर साइंस नॉट कंपनी सेक्रेटरी। बहुत जन को सीएस का फुल फॉर्म तक नहीं पता। सो इट समटाइम्स फील बैड कि सीएस का फुल फॉर्म नहीं पता, बट इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम आल्सो। द मेन प्रॉब्लम इज वी हैवंट बीन एबल टू प्लेस आवरसेल्व्स इन दैट वे। सीए वालों ने अपने से, सीए के बारे में सबको पता है, सीए है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि सीए वालों ने अपना इज्जत वैसे बनाया है समाज में कि उनको हाँ भाई सीए है, ये तो सीए से ऐसा लगता है हाँ आलतू फालतू कुछ होगा, बहुत इजी होगा। बिकॉज वी हैवंट बीन एबल टू प्लेस आवरसेल्व्स इन दैट पेडेस्ट्रल, आई वुड से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज पीपल्स परसेप्शन अबाउट अ थिंग। लोग सीएस की इज्जत नहीं करते जल्दी से, आई अग्री, कंप्लीटली अग्री। इवन इन द लॉ ऑफ इटर्निटी ऑल्सो सीएस का इज्जत तब तक नहीं किया जाता जब तक कंपनीज एक्ट का मैटर ना आ जाए। एवरीडे गाली देते रहेंगे कि सीएस ऐसे कर रहे, सीएस वैसे कर रहे, सीएस लोग को कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, बट जैसे ही कंपनीज एक्ट का मैटर आया, उन लोग के लिए सीएस भगवान हो जाता है कि भाई इसी को आता है। आई हैव सीन पर्सनली इन इंटर्नशिप्स ऑल्सो, ऐसे सीएस को कुछ इज्जत नहीं देंगे, बट दोज हु अंडरस्टैंड कि सीएस क्या क्या कर सकता है, दोज हु नो द पावर ऑफ सीएस, दे रियली रिस्पेक्ट सीएस अ लॉट, आई वुड से रियली अ लॉट। क्योंकि अभी आजकल देखो गवर्नमेंट भी कितने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आई दिन देर आर अमेंडमेंट्स कमिंग इन कि कभी कुछ अमेंडमेंट आ गया, सीएस को ये पावर मिला, सीएस को वो पावर मिला,
अब डायरेक्ट टैक्स कोड आने का बात हो रहा है, उसमें भी बोल रहे हैं कि सीएस को भी पावर देगा फॉर टैक्स ऑडिट एंड ऑल. सो दीज आर रियली गुड इनिशिएटिव. एंड अगर कुछ नहीं हो, एक बार बस कंपनीज एक्ट खोलना, सेक्शन 2 में जाना, डेफिनेशन सेक्शन जो है उसका क्लॉज नंबर 51, इट डिफाइंस द की मैनेजरियल पर्सनल. तो वहां पे कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइंड एज अ की मैनेजरियल पर्सनल. बहुत ऊंचा पोजीशन है सीएस का. इतना ऊंचा पोजीशन हो कि कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हो सबसे पहले सीएस को ही पकड़ेगा. तो इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, इट्स अ बैड थिंग ऑल्सो. इज्जत लोग तभी करेंगे जब आप अपना इज्जत दिखाओ कि हाँ आपने आप में क्या है. इट्स स्किल्स ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. खाली सीएस कर लिए उसका मतलब ये नहीं कि तुमको मिलेगा जो चाहिए. सीएस का पे भी कम होता है, बट कुछ कुछ सीएस का पे बहुत अच्छा होता है. वाई? क्योंकि उन लोग अपना स्किल्स दिखाए हैं. इतने जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, इफ यू आर गोइंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बोर्ड मीटिंग में आपको एंट्री मिलता है एज अ के एम पी. सारा बोर्ड मीटिंग को आप कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो. रिलायंस का एजीएम जब लाइव टेलीकास्ट होता है सीएनबीसी ये सब में, आप लोग देखते हो निर्मला सीतारमन बोल रहे हैं, सावित्री मैम वहां बैठ के इज कोऑर्डिनेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. वाई? बिकॉज शी हैज दैट स्किल सेट. मेरा सावित्री मैम से खुद काफी देर बात हुआ है पर्सनली. शी हैज दैट ऑरा, शी हैज दैट पर्सनैलिटी एज अ लीडर, आई वुड से. क्योंकि उन्होंने अपने आप को वैसा बनाया है, डेवलप किया वैसा, तो उनको पे भी वैसा अच्छा मिलता होगा. आई हैव नॉट सीन, एनुअल रिपोर्ट खोल के देखना होगा कि कितना पे मिलता है. तो देयर आर वेरियस थिंग्स जो सीएस कर सकते हैं. एंड आप बहुत मजेदार चीज है, आप एनुअल रिपोर्ट खोल के कंपनी का पूरा पता कर सकते हो कंपनी ने क्या नॉन कंप्लायंस की है. तो बहुत मजा आता है ये सब देखने में कि हाँ ये इसने यहाँ गड़बड़ किया, इसने यहाँ ये कंप्लेन नहीं किया. देख भाई मेरे पास श्रम कार्ड है, ज्यादा करेगा तो बस ये सीधा गवर्नमेंट के पास. ये सब बहुत मजेदार चीज है कि हाँ सीएस गेट्स टू नो अ लॉट, बट एट द एंड यू हैव टू प्लेस योरसेल्फ वेल इन द मार्केट. एक जो होता है कि आई वुड से कि इसमें people will get you, not maybe today, not maybe tomorrow, but over the time. जैसे जैसे compliances का वो बढ़ रहा है burden, I wouldn't say it is a burden, transparency बढ़ाया जा रहा है कि आपको ये compliance करना है, आपको वो compliance करना है. It's really good. एक कंपनी ने CS अपॉइंट नहीं किया, उसके ऊपर 52 lakhs का पेनल्टी आया है बिकॉज उसने खाली एक CS अपॉइंट नहीं किया. आप लोग को लगता है कि खाली सीएस छोटा सा टर्म है, कोई इज्जत नहीं है. जाके देखिए एक बार बड़े बड़े कंपनीज में कि हम लोग का, जैसे मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ, हम लोग को सिंपली बोला जाता है भाई सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट से आ रहा है तो ठीक ही होगा डॉक्यूमेंट. दे डोंट डाउट द रिलायबिलिटी ऑफ आवर डिपार्टमेंट बिकॉज हमने अपने आप को वैसा प्लेस किया कि हम लोग वी ट्राई टू मेक श्योर कुछ गड़बड़ी ना हो. और फिर सीएस का खाली सेक्रेटेरियल काम नहीं हो जाता है, ड्यू डिलिजेंस इज देयर. ड्यू डिलिजेंस में कितना ज्यादा मजा आता है. मैं सेक्रेटरियल ड्यू डिलिजेंस अपने एक इंटर्नशिप में करता था. वी यूज्ड टू प्रिपेयर कि कंपनीज एक्ट में कहा क्या नॉन कंप्लायंस है, उसमें कितना पेनल्टी इम्पोज हो सकता है. वी यूज्ड टू रैंक देम इन रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन. रेड पे की मतलब तुरंत एक्शन चाहिए, क्रिमिनल लाइबिलिटीज भी आ सकते हैं. तो दीज आर ऑल्सो रियली फन. उसके बाद फिर हम लोग लिटिगेशन में जा सकते हैं. लिटिगेशन इज रियली रियली फन. आई लव लिटिगेशन एस्पेक्ट्स. ड्राफ्टिंग करना उसमें, फिर जाके केस लड़ना. एज अ सीएस यू कैन अपीयर ओनली बिफोर द ट्राइब्यूनल्स. एनसीएलटी जा सकते हैं, एंक्लैट जा सकते हैं, सैट जा सकते हैं. ये सब वी कैन अपीयर ओनली बिफोर द ट्राइब्यूनल्स, नॉट बिफोर द कोर्ट्स. कोर्ट्स में बाय वर्च्यू ऑफ एडवोकेट्स एक्ट ओनली एडवोकेट्स कैन अपीयर. तो बट इफ यू वांट टू गिव अ किक स्टार्ट, you can go for litigation also. खाली हम लोग का फाइलिंग का रोल नहीं है. वी नीड टू चेंज द परसेप्शन ऑफ पीपल रिगार्डिंग दैट. क्योंकि फाइलिंग का मैटर्स खाली कंपनी के लिए आता है. फाइलिंग का रिक्वायरमेंट खाली कंपनीज के लिए ज्यादा है, वो भी बहुत छोटे छोटे बाबू कंपनीज जो हम लोग बोलते हैं.
ऐसे ही चल रहा है, बाबू कंपनीज, द शान कंपनीज, ये सब में उतना कंप्लायंस को वो नहीं है कि हो रहा है चलने दो। बट इन बिग कंपनीज देर इज अ लॉट ऑफ कंप्लायंस, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। कोई कोई कंपनी में कंप्लायंस एंड लीगल एक ही वो होता है, लीगल एंड सेक्रेटरियल देर इज अ सिंगल डिपार्टमेंट बिकॉज द रूल्स आर वेरी इंटर रिलेटेड। CS is also law. Law में एक मतलब law is में CS is a niche area I would say. पूरा corporate law है. So it will take time, but firstly we need to value ourselves. Then we need to make people value us. That's very right, sir. And actually, getting recognition in an Indian society is very tough. Parents are earlier parents used to be join science stream, either become a doctor or become an engineer. Now they have started, we are parents are taking small steps, because even I think that earlier taking commerce also was a lot of uh, hectic task. हाँ, So उसमें इज्जत भी मिलेगा, कॉमेंट्स में उतना हुआ है. yeah, and even today I'm not targeting any course, but even today when students takes arts, he is he or she is like the most people consider them, oh पढ़ाई में अच्छा नहीं था. उससे आई वुड जस्ट इसमें एक चीज एक पर्सनल इंसिडेंट जो बोला था, हम लोग का स्कूल में ऐसा था, like there were around 24 sections in class 11 and class 12 each. तो उस 24 सेक्शन में अराउंड 3 सेक्शन कॉमर्स के थे, एक या 2 सेक्शन आर्ट्स के थे, बाकी सारे साइंस के थे. तो हम लोग को डे वन ऑफ क्लास 11 यही बोल दिया गया, देखो साइंस वाले इज द जनरल क्लास, कॉमर्स इज SC ST एंड आर्ट्स इज OBC. ऑन अ लाइटर नोट, लाइक नॉट ऑन मस्ती के लिए. तो इट इज ओके, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स वाले लोग को उतना इज्जत नहीं दिया जा रहा है, आर्ट्स वाले लोग को उतना इज्जत नहीं दिया जा रहा है इन दैट मैनर. बट वी कैन एट द एंड वी ओनली keep the society running. I would say not completely keep the running, but अगर बिजनेस नहीं, बिजनेस ये सब जो है, हाँ साइंस वाले भी कर रहे होंगे, बट कॉमर्स में हम लोग को बिजनेस समझ में आता है, जो धंधा कर रहे हैं, एट द एंड businesses are contributing to the economy. Business will employ people, it will create job opportunities. Arts में भी like everything is interrelated. ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स छोटा है कोई कोर्स बड़ा है. तो इट्स जस्ट अबाउट द परसेप्शन ऑफ पीपल, हाउ यू टेक थिंग. अगर मेरा पूरा फैमिली साइंस में हो, अगर मैं कॉमर्स कर रहा हूँ, इट वुड बी अ डिफरेंट थिंग. सम पीपल विल टेक इट कि भाई ये तो अलग कर रहा है, कुछ तो फोड़ के दिखाएगा ये, और कुछ भाई ये अलग करे, ये तो गया. So it's just about the perception, and you have to put it you have to give a stand to yourself. देख भाई मैं तो ये कर सकता हूँ, तुमको मेरे साथ आना है आओ, नहीं आना है मत आओ. Yes, sir. Well said. That's actually very relatable, and that's actually very much required for the students to hear. We should not get into, I'll say, I'll not say parents, but parents always think right for us. They are just a little bit concerned, but we should not come into talks for the society. Society always discourages you. They'll never get happy for whatever you are doing. इसमें जैसे वो बोलते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे. The thing लोगों is, का काम है कहना. हाँ, लोगों को काम कहने, because that चार लोग won't help you survive. Yes. It's you who have to ensure your own survival. So you have to keep yourself running. अब तुमको वो कैसे करना है, सब तो you. वो लोग बोलते रहेंगे कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, but at the end when you will be successful, when you reach that position, people will respect you. Same मोदी जी, अगर खाली वो उनका पहले बोला जाता कि मतलब वो चाय बना के बेचे, खाली सब लोग फैमिली में ऐसे मजाक उड़ाया जाता है, भाई ये तो चाय बना के बेचता है. बट टुडे व्हेन ही इज द प्राइम मिनिस्टर, आज उनका वैसे इज्जत है, भाई फैमिली में ये भाई ही देखो प्राइम मिनिस्टर है, 100 फोन आता होगा, भाई मेरे लिए ये कर दीजिए, मेरे लिए वो कर दीजिए, बेटा ये कर दो वो कर दो. आज he placed himself in that place. He might have worked a lot, I would say,
we can't even imagine कि हाँ उन्होंने इतना काम किया that he has reached his position and has been able to sustain. और ऐसे ही हजारों एग्जाम्पल होंगे. तो people will keep on telling, but once you achieve the success which you wanted, सब लोग आपके पीछे ही आएंगे कि हाँ ये कर दो, हाँ वो कर दो, प्लीज ये कर देना, मेरे लिए मेरा ये काम निकाल दे, मेरा वो काम निकाल दे. वही हो जाता है. Okay, sir. Thank you for the answer. Before moving towards the next question, I would like to request the audience, if you have any more queries, kindly drop it in the chat box. We are trying to make sure that all your queries get answered in the series of questions you have given us earlier. If not, we will surely ask them at the end. I hope that's clear. Thank you. Moving towards the next question, sir. Yeah. What are the other skills one should have to become an excellent CS, particularly soft skills? Are there any requirement for that? See, I would, before proceeding to answer the question, I would like to throw a question to you and each and everyone here. Do you want to become, as you said, you're pursuing CA. So, do you want to become a successful chartered accountant or you would want to become a successful person? And to everyone, do you want to become a successful company secretary or do you want to become a successful person? If people can answer that. I'll start with the answer, then I guess people will join me. Yeah. Personally, I think becoming a good person will eventually result me in making a good chartered accountant. So I'll prefer being a good person because that will actually lead me to become a, if not in present, but in future, I can become a good chartered accountant. I would like to request other members to kindly answer. Well, I do think the same thing, Samruddhi. I agree with you. Being a successful person is the most important thing in life, and eventually we'll become the successful CEO or CS afterwards. Same also for me. Yes. Even in chat box, students are writing. Yeah. If I address them, Tina Bharadwaj, Prashasti, Purab, Saima, all are saying successful person. The best answer I saw is Timer telling I want to become a successful person because I know I'm a good person. That confidence we actually need. बस लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस चाहिए. Yeah, so I would say कि देखो यहाँ पे आई एम टेलिंग इंसिडेंट. हम लोग का ओडीओपी होता है सीएस फाउंडेशन में. तो हम लोग के वहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग अभी द प्रेजेंट चेयरमैन मोहित शॉर्सर ऑफ ईआईआरसी ही आज दिस क्वेश्चन. मेरे माइंड में भी सेम आंसर था कि आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. बट सब लोग ने हाथ उठाए इस बात पे कि दे वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल सीएस. तो यार फिर लग रहा है यार पीयर प्रेशर में इतने सारे लोग हाथ उठा रहे तो हो सकता है हम कुछ गलत बोल रहा हूँ. तो मैंने भी हाथ उठा दिया बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इन ऑल्सो. बट फिर सर ने बोला कि इफ यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन you will automatically become a successful CS or any other thing. At the end, successful होना जरूरी है for a person. Like you won't have to become a successful person. CS ये सब छोटा चीज है. हो सकता है CS might not work out in that way as you're thinking. The CA may not work out in that way, but you can excel in any other field. So becoming a successful person is very important rather than a successful CS. So if coming back to the question, can you like reiterate the question once? So the question was, what other skills one should have to become an excellent CS, particularly soft skills? Yeah. So I would rather than successful CS, I would just change it with successful person. Reframing the question a bit would be better because देखो after this session I don't want to make it कि हाँ खाली CS का था या CS related. It's हम लोग को खाली लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना है. CS एक बहुत छोटा चीज है.
हजारों चीज है दुनिया में. CS is very small thing. It might be very powerful, but it's at the end a small aspect. So for becoming a successful person, there are few things. सबसे पहले तो already at the start of the session we talked about discipline. Then you must be confident. Self confidence is very important. As I used to say कि अभी पूरे सेशन में भी बोला कि खुद को हो सकता है आपको 100 बार दिलासा देना पड़े, बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट विद इन. अगर आपके खुद में कॉन्फिडेंस होगा, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस, आपके आंसर्स में कॉन्फिडेंस, सब चीज में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगेगा. उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स में इट्स, आई वुड से पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल, ये सब ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन. उसके बाद देर आर फ्यू थिंग्स जो लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए. से ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी गुड थिंग. एंड उसके बाद डूइंग, मेकिंग, अगर आपको कभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो आप नोट्स में लिख लो rather than टॉकिंग वैसे उतना वो करने से. रैंटिंग अबाउट थिंग्स, राइट इट डाउन इन नोट्स, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा. उसके बाद यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स की क्या बाजार में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है. नो अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट, स्मॉल इंट्रिकेसीज. कौन सा हो सकता है, अब मेरे को जैसे मान लो उतना बहुत आलस आता है कि कोई सीरीज देखे, ये देखे, वो देखे. बट वेन समवन इज डिस्कसिंग अ थिंग, आई वुड लाइक टू लिसन कि हाँ भाई बोल क्या रहे हैं उन लोग. थोड़ा सुनने में मजा आता है कि हाँ, फ्रॉम दैट वे यू गेट टू नो उस सीरीज में क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद यू मस्ट हैव फाइनेंशियल लिटरेसी. फाइनेंशियल लिटरेसी इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आई वुड से हम लोग को क्लास 5 से ही पढ़ाना चालू कर देना चाहिए. अब तो कोई भरोसा नहीं, क्लास 1 से भी चालू कर दे तो चलेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लिटरेसी. क्योंकि पैसे कमा तो लेंगे हम लोग, बट उसको यूज कैसे करना है, हाउ मनी वर्क्स, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्योंकि इट्स पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न जो था, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. और पैसे से ही पैसे बनते हैं. हम लोग अगर एज एन एम्प्लॉयमेंट, मैं जो काम करूंगा पूरा दिन ऑलमोस्ट काम में निकल जाता है. एंड में सैलरी, स्टाइपेंड, ये सबके नाम पे क्या मिलता है, पीनट्स मिलता है. सबको पता है. तो उतने से पैसे से कुछ नहीं होने. इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ किंग साइज, हम लोग को उतना उससे कुछ नहीं होगा. फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए, बी इट स्टॉक मार्केट. हम लोग का सिंपल हम लोग बोलते हैं, तो मेरा तो ये है कि टैक्स में वी पांचों हेड ऑफ इनकम में कुछ ना कुछ इनकम होना ही चाहिए हम लोग का. देर योर एक्टिव इनकम से ज्यादा हमारा पैसिव इनकम होना चाहिए कि अगर हम आज कुछ नहीं करें तो भी इतना पैसा है कि हम अपना लाइफ जैसे जीना चाहिए जी सकते हैं. सो फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके बाद एक देयर इज अ फन थिंग ओवर हियर कि सब एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या किसी को हाईएस्ट टैक्स पेयर बनना है इंडिया में. तो एवरीवन वाज लाइक नो नो नो, मेरे को हाईएस्ट टैक्स पेयर नहीं बनना है. आई वाज लाइक हाँ मेरे को बनना है, क्यों नहीं बनना है. जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा टैक्स दे रहे, टैक्स दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है. सो आई वुड लव टू बी द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन इंडिया. उसके बाद रीडिंग बुक्स इज अ गुड थिंग, बिकॉज रीडिंग बुक्स helps to know a lot of new words. It, I would say, sharpens your imagination power. पर्सनली मैं खुद बुक्स नहीं पढ़ पाता हूँ. मुझे बुक पढ़ने का बहुत मन होता है, बट आलस बहुत ज्यादा आ जाता है कि नहीं करना है. तो नेक्स्ट थिंग इज, इतना वी हैव टू ट्राई उतना आलस ना करें हम लोग, कि ठीक है आलस नहीं करना चाहिए उतना. I procrastinate a lot. We need to work about these things. जितने भी हमें कमियां हैं, we have to keep on improving those things. तो सॉफ्ट स्किल आजकल से, हाँ अभी AI एंड ऑल, यू वांट टू यूज AI. कैसे AI यूज होता है मुझे खुद नहीं आता उतना, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डाउन द लाइन यू नीड टू वर्क विद दैट. तो कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तो एट द एंड इट्स बीइंग स्टेइंग अपडेटेड. तो ऐसा टाइप वो है.
That's actually very nice, sir. But nowadays, students are preferring to use AI more negatively than positively. I'll say we need to mold students to use it in a better way. हाँ, सो इसमें जैसे आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ हैकिंग। Hmm. हैकिंग में ब्लैक हैट व्हाइट हैट दोनों हैकिंग होता है, मतलब एथिकल हैकिंग एंड अनएथिकल हैकिंग। अनएथिकल हैकिंग से की हो गया आपका लोगों का फायदा उठाने के लिए कर रहे। एथिकल हैकिंग इज हम लोग उसको स्किल को यूज करके दूसरों का ताकि फायदा हो, द रॉबिन हुड काइंड ऑफ थिंग, वो वैसा करे। सो इट्स, देखिए हम लोग, मेरा ये पर्सनली बिलीव है कि किसी का नुकसान करके किसी का फायदा उठा के कुछ काम नहीं करना है, चाहे 10 पैसा कम कमा ले बट किसी का नुकसान ना हो। बिकॉज खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि भाई मेरे वजह से उसको दुख हुआ है या उसको ऐसा हुआ। इट्स नॉट अ गुड थिंग। आई वुड लव टू हेल्प एज मेनी पीपल एज आई कैन। आई पर्सनली बिलीव सो, इसलिए मेरा एक ये हैबिट भी है कि जितना भी वॉट एवर आई अर्न आई ट्राई टू सेट असाइड सम अमाउंट ऑफ दैट, कि बाद में कभी किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए आई एम देयर। बिकॉज एट द एंड जैसे कंपनीज का सीएसआर का एस्पेक्ट आता है, बिजनेस हम लोग का इंडिया, हम लोग का उससे कमा रहे, तो पे बैक टू द सोसाइटी, यू आर अर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी, पे बैक टू द सोसाइटी। तो इन दैट वे हम लोग का भी, वी आर earning everything from the society only, so we need to also pay back to the society, say in the way of हम लोग का CSR। पैसे के मामले में सब चीज नहीं होता है। if we give people respect, we are paying back to the society, to the people। if we help people out, we are paying back to the people, because हो सकता है मेरे पास कुछ नॉलेज हो आपके पास ना हो, या आपके पास कुछ, आपको ऐसा बहुत चीज पता हो जो मुझे नहीं पता हो। सो वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। ऐसा हम लोग बहुत जगह अगर सोचते हैं कि भाई इसको क्या ही पता होगा, उसको बहुत चीज ऐसा पता होगा जो हमें नहीं पता। वी डोंट रिस्पेक्ट पीपल, ऐसे जो लोकल शॉपकीपर्स होंगे, ये सब मैनी टाइम्स वी डोंट रिस्पेक्ट देम। बट जाके देखो उनके साथ 10 मिनट बात करके देखो, उन लोग हजारों लोग को डील करते हैं। दे नो हाउ टू डील पीपल, दे नो अ लॉट अबाउट द जेंडर, दे हैव अ लॉट ऑफ जेंडर नॉलेज। हम लोग को पता नहीं होगा कि यहाँ 10 मीटर दूर क्या हुआ या आगे क्या हो रहा है, उन लोग को सब चीज पता हो रहा है, ये बगल के घर में क्या हो रहा है, वहां से लेके दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है। जस्ट आई इमेजिन कि भाई इन लोग को पता कैसे रहता है इतना चीज। आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव दैट जनरल अवेयरनेस कि इसको इतना चीज कैसे पता है, कि उन लोग को चाहे पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, उन लोग को सब नॉलेज रहता है। एंड हालांकि वो लोग वहीं पे बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं 100 जगह जा रहे हैं या कुछ पढ़ रहे, वो लोग उसी जगह में रह के उन लोग को सब चीज पता है। इट्स वेरी लवली थिंग कि they are knowing so much. So try communicating with people and respecting people and share as much knowledge as you can. In these way, we can pay back to the society. Yes, sir. I agree that was a very valuable insight. Okay, so next question. What will be the best combination? CS with MBA or CS with LLB? See, इसमें है MBA तो मैंने खुद किया है, तो MBA का I can't comment much, but I would say CS plus MBA is more of an corporate thing, and CS plus LLB is more of a litigation or practical court aspect thing। कि अगर किसी को कॉर्पोरेट ये सब में काम करना है ज्यादा, एंड ऐसा नहीं है कि खाली स्पेसिफिक लॉ में करना है कि बिजनेस ये सब का करना है, CS एंड MBA इज अ गुड ऑप्शन। कि उस MBA टीचेस यू हाउ द बिजनेस रन, बिजनेस के बारे में बताता है, एंड CS आपको लॉ के बारे में बताता है। तो कंपनीज अगर किसी का ये है कि कॉर्पोरेट, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट में जाना, CS प्लस MBA इज अ गुड थिंग। बट जैसे मेरा है कि मेरे को लिटिगेशन इज फन, आई लव प्लेइंग विद वर्ड्स। law is all about playing with words। कॉर्पोरेट्स में भी इट्स इम्पोर्टेंट, MBA में भी होता है कि यू मस्ट नो हाउ टू डील विद पर्सन, किसको कैसे कब क्या बोलना है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। बट CS में LLB मेरे को लगता है तभी लेना चाहिए जब आप लिटिगेशन में जा रहे हो, कि आपको कॉर्पोरेट लिटिगेशन में जाना है। एल्स एट द एंड देखिए डिग्री तो एक ही यूज होता है, कुछ भी कर लीजिए आप, 100 डिग्री चाहे ले लो। मेरे को लगता है कभी किसी का लिंक्डइन प्रोफाइल देख लो या विजिटिंग कार्ड देख लो, भाई 100-200 डिग्री इसने ले रखा है, हम इतना डिग्री लेके उखाड़ा क्या है इसने।
बहुत जन बिना डिग्री लेके भी बहुत चीज कर लेते हैं. हो सकता है रिलायंस, अंबानी एंड ऑल. अंबानी के पास होगा हजारों डिग्री, नहीं ना, बट एट द एंड ही इज सो रेप्यूटेड, ही इज रिस्पेक्टेड. लेट रतन टाटा जी, उन्होंने इतना चीज किया है. ही हैज क्रिएटेड अ लेगेसी. द रिस्पेक्ट ही हैज अर्न्ड फ्रॉम पीपल. थोड़ी वो डिग्री ये सब आपको पता थोड़ी की है कि वो डिग्री से आपको रिस्पेक्ट आया. बिकॉज इट्स द वे हाउ ही ट्रीटेड द पीपल, how he respected people, the environment, each and everyone. So CS plus MBA बस यही है कि आपका ठीक है, डिग्री आपको दो लेना है, मेरे हिसाब से एक डिग्री से भी हो जाता है. खाली CS इज ऑल्सो एनफ, खाली LLB इज ऑल्सो एनफ, खाली MBA इज ऑल्सो एनफ. इट्स आपका कितना उत्सुकता है चीजें जानने की, उस पर डिपेंड करता है. बहुत जन करते CS भी कर रखे, LLB भी कर रखे, MBA भी कर रखे. ठीक है, वो एट द एंड उनको MBA इज मोर, अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, बिजनेस मैटर्स में, बिजनेस में जाना है, एंड लिटिगेशन ये सब में अगर जाना है, मेरे हिसाब से CS LLB या खाली CS या खाली LLB, दीज आर एब्सोल्युटली ओके. कि हाँ लिटिगेशन में किस कंपनी ने वो किया, उसको बचाना है, उसको वो किया. एंड लॉ में आई वुड, ठीक है, आई विल कम टू दिस लेटर, लॉ का एस्पेक्ट में. हाँ, तो it's very fun depending on the course you, on the environment you want to be in. मेरे को पर्सनली मेरा बिलीव ये है कि आई डोंट वांट टू वर्क अंडर समवन, आई वांट टू बी माय ओन बॉस. स्टार्टिंग में आपको किसी के अंडर काम करना ही पड़ेगा ताकि यू गेट टू लर्न. सो आई एम इन दैट फेज ट्राइंग टू लर्न थिंग्स एज मच एज आई कैन, बट डाउन द लाइन आई डोंट वांट टू वर्क अंडर समवन. चाहे मैं खुद बिजनेस करूं या प्रैक्टिस करूं एज अ लॉयर, एज अ CS और एनीथिंग, बट आई डोंट वांट टू बी वर्किंग अंडर समवन. खुद का बिजनेस करो, खुद का कुछ करो, उसी में मेरे को लगता है इट्स फन. That's actually true. Piling up degrees will give you knowledge and a little bit more recognition, but still, having one good degree will also help, I guess. इवन नॉट हैविंग एनी डिग्री वुड हेल्प. देखो डिग्री आज के दिन पे, हाँ हो जाता कि भाई डिग्री नहीं किया तो क्या. पहले लगता था कि BCom कर लिया तो बहुत बड़ा बात है पुराने जमाने में. आज के डेट पे BCom वाले लोग, नॉट पर्सनली अगेंस्ट एनीथिंग, बट BCom वाले लोग का कोई इज्जत है खाली BCom केवल बिकॉज डिमांड सप्लाई का मैटर है. पहले उतना सप्लाई नहीं था, डिमांड था बहुत. आजकल डिमांड नहीं है, हद से ज्यादा सप्लाई है. बेसिक इकोनॉमिक्स तो इज्जत नहीं रहा कुछ. वही बात है, BCom माइट बी अ गुड थिंग, बट वही बात है कि इतने भरे हुए हैं बाजार में कि उतनी इज्जत नहीं है. अब इसमें डिमांड सप्लाई से मेरे को आई गॉट टू रिमेम्बर गुड थिंग से CA का. देयर इज डिमांड ऑल्सो, देयर इज इक्वल सप्लाई ऑल्सो, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे है आई वुड से. बट कंपनी सेक्रेटरी हद से ज्यादा डिमांड, एंड आए दिन डिमांड पे डिमांड बढ़े जा रहे हैं, बट सप्लाई नहीं है. There are only 71,000 around CS in India as of today. 71 to 72 या से 80,000 पकड़ो. उसमें भी बहुत जन का CS का मेंबरशिप ये सब, बहुत जन CS सब करके रखते हैं, तो वैसे थोड़े हट जाते हैं. बहुत जन हाउस वाइफ है या कुछ नहीं कर रहे, बस नाम के लिए ले रखे, सो 50% तो वैसे ही हट जाते हैं. 40,000 CS है, उसमें कोई बहुत जन एम्प्लॉयमेंट में है एंड बहुत जन प्रैक्टिस में है. सो सोचिए खाली 40,000 CS इन अ पॉपुलेशन ऑफ इतना बिलियन, तो बहुत हद से ज्यादा डिमांड है. एंड आए दिन कोई ना कोई कंपनीज आई जा रही है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आ रहे हैं कि हाँ डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, बट सप्लाई नहीं है. एंड हम लोग का इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि सप्लाई चाहिए तो बढ़ा दे, ऐसे पास करा दे. इंस्टीट्यूट जल्दी पास नहीं कराते. डिमांड होने दो, दे don't increase the supply very much unless you are a professional, proper professional. I love the institute in this way and I respect the institute in this way कि उन लोग they keep it a completely professional course. Professional खाली नाम के लिए नहीं है, आपका एग्जाम्स में हो, आपका बातचीत में कुछ भी, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे. With the way you write answer also tells how professional you are. Whether you complete your paper or not, that also tells you how professional you are or not.
Actually, the next question was related to this only. It's the last question of the series, and I would also like to take up the query from the chat box. It's pretty similar. Someone has asked Tina Bharadwaj how to solve case study questions. Sometimes it is difficult to understand the case study while reading the exam, especially for company law. Hmm. Hmm. So I would say case study based question देखिए रिसेंट में अभी बहुत सुनने लग गया कि द इंस्टीट्यूट इज गिविंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग दिसंबर 22 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट हम लोग का ओपन बुक एग्जाम होता है प्रोफेशनल में तो दिसंबर 2022 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट सब ओपन बुक एग्जाम तो सब हल्के में लेते हैं ओपन बुक ही तो है हम लोग कोई नहीं पढ़ते उतना एंड इट्स अ फैक्ट तो पेपर आया बुक देख कुछ आंसर नहीं है कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मॉड्यूल में कुछ नहीं है हम लोग पेज पलटे जा रहे हैं सब लोग किसी को कुछ नहीं मिल रहा है एग्जाम हॉल से इन्विजिलेटर भी 5 मिनट के लिए बाहर चला गया था सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं भाई आंसर क्या है बता नो वन नोज द आंसर बिकॉज इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में है ही नहीं खाली एक क्वेश्चन गिन के 6 मार्क का इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में था सबको वही मिला और किसी को कुछ नहीं मिला है तो हम लोग एक ओपन बुक एग्जाम में हम लोग को होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहता है केस लॉज ये सब भी रहते हैं थोड़े तो उसमें वी हैव अ सुपर मास्टर इंडेक्स तो मैंने क्या किया 2 बार पेज पलटाया सारा बुक घुमाया क्योंकि एक बार तो पढ़ा था मुझे पता है कि ऐसे सिमिलर कुछ होना चाहिए मॉड्यूल में अगर एक बार भी नहीं पढ़े तब दिक्कत है एक बार तो पढ़े ही हो तो आपको थोड़ा नॉलेज है कि इसमें क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए यू मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ इस बुक में नहीं है ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा है तो मैंने बुक हटाया खुद आंसर लिखना चालू कर देन उस पेपर में आया था आज तक हमने जो भी पढ़ा है सीएस में चाहे फेमा हो उसके बाद सेबी का कुछ हो कंपनीज एक्ट हो कुछ हो एवरीथिंग स्टैम्प एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस सब चीज भर दिया था उस पेपर में आज तक जो भी पढ़ा है लकीली आई वॉज डूइंग लॉ ऑल्सो तो थोड़ा उससे मतलब नाक लॉ तो ऐसे मतलब ठीक है नॉलेज गलती से हल्की इतना सा आया होगा whatever knowledge today I have is mostly because of CS. I would honestly say that. And तो आई न्यू कि बुक में नहीं है अब आपको देखो CS में लॉ आता है एंड लॉ इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉजिक विद LAWGIC तो उस लॉजिक में आपको थोड़ा लॉजिकली क्या होना चाहिए वो एंड लॉ क्या बोलता है दोनों एक साथ मिला के अगर आप लिखो कि भाई देखो इस केस में इसने अगर इसे ए ने बी को मारा हम लोग एक एग्जांपल देते हैं आईपीसी का देयर इज अ सिनेरियो ए किल्स बी या थोड़े देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल ए किल्स दैट ग्रुप ऑफ पीपल अब देयर आर 2 रीजन वन उसका मन किया इसलिए मार दिया एंड सेकेंड देखो यार मार रहे लोग बैलून उड़ा रहे तो उसने मारा ऐसे मन किया एंड सेकेंड इज दैट ग्रुप ऑफ पीपल वाज अ टेररिस्ट अब इसमें अगर आप लॉ नहीं भी पढ़े लॉजिकली देखा जाए उसने मस्ती के लिए मारा देन ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर कि हाँ उसने उसका खून किया बट सेकेंड सिनेरियो उसने उनका खून इसलिए किया क्योंकि दे ऑल वर टेररिस्ट तो उनको मारना जरूरी था ताकि वो करोड़ों लोगों को बचाया जा सके तो दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉ नहीं पता तो भी आप लॉजिक से आंसर कर सकते हो बिकॉज लॉ इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉजिक क्या होना चाहिए तो आप आंसर कर सकते हो तो उस क्वेश्चन को पढ़ के एंड अगर आप मान लो प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचे हो ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब कॉपी पेस्ट कर करके या कुछ एक दिन पहले पढ़ के पास किए हो it's impossible to pass by studying for a few hours in such a course. तो आपने पूरे कोर्स को पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा कि हाउ थिंग्स वर्क तो यूज दैट लॉ एंड लॉजिक टू फ्रेम योर आंसर्स इन केस लॉज ये सब बातें बहुत जन होता है कि छोड़ देते हैं क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छोड़ना चाहिए कुछ भी हो जाए बिकॉज इफ यू आर लीविंग अ टास्क मतलब इफ यू आर लीविंग अ क्वेश्चन say that 100 marks paper is your assignment अगर आप मान लो कोई जॉब कर रहे हो आपको वो असाइनमेंट दिया गया तो आपको वो असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करना होगा कुछ कुछ कर दिया जो जो आता है कुछ कुछ नहीं किया वैसे नहीं चलना है
एंड यू विल हैव अ डेडलाइन, आपको उस डेडलाइन में वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो व्हाई डिड आई से कि एग्जाम इज अ प्रोफेशनल वो, क्योंकि यहाँ वो 100 मार्क का पेपर दे के आपने खाली नॉलेज चेक नहीं कर रहे, दे आर चेकिंग हाउ प्रोफेशनल यू आर, वेदर इन दैट गिवन डेडलाइन, वो 3 घंटे के डेडलाइन में यू आर बीइंग एबल टू कंप्लीट द पेपर और नॉट। अगर आप भाई वो 3 घंटे के पेपर 3 घंटे के टाइम में 100 मार्क का पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, देन सॉरी टू से यू आर नॉट एट ऑल प्रोफेशनल। तो आपको थोड़ा प्रोफेशनली एक्ट करना होगा। सो आई वॉज ऑलवेज कि मेरे को 100 मार्क्स पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर आप 100 मार्क अटेम्प्ट ना करो तो आपका पास होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अगर मैं मेरे पास पेपर है चेक करने के लिए, मैं सबसे पहले पूरा पेपर घुमा के देखूंगा कि उसने पूरा 100% अटेम्प्ट किए। अगर उसने 100% अटेम्प्ट किया, आई विल थिंक कि हाँ ही स्टिक्स टू द डेडलाइन and acts in a professional manner to complete the task given. Now I will check it accordingly. But यही अगर अदर वे होता, उसने कंप्लीट नहीं किया होता, मैं बोला भाई ये तो यहीं पे प्रोफेशनल, ये पूरा टास्क भी कंप्लीट नहीं कर, मेरा पढ़ चेक करने का मन नहीं करेगा, तो जितना किया थोड़ा बहुत मार्क्स दे के उसको वैसे निकाल दूंगा, बट हो सकता है ही विल फेल, देयर आर हाई चांसेस। तो वही हो जाता, प्रोफेशनली यू हैव टू एक्ट। एंड उसके बाद यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली। हम लोग के टाइम पे कभी रीडिंग टाइम नहीं मिलता था। यू ऑल आर वेरी लकी टू गेट अ रीडिंग टाइम। हम लोग को 3 घंटे में पेपर पढ़ना है, पेपर कंप्लीट करना है, यू हैव टू प्रेजेंट अ पेपर वेल। तो वो 15 मिनट विच यू आर गेटिंग नाउ, द रीडिंग टाइम इज वेरी वेरी यूजफुल। मेरा पेपर जब आता था हम लोग के टाइम पे, मैं स्टार्टिंग का 20-25 मिनट खाली पेपर में कुछ नहीं लिखता था, 20-25 मिनट में पेपर पढ़ रहा होता। एंड मेरा एक हैबिट था, पेपर पढ़ रहा हूँ वहीं पे शॉर्ट शॉर्ट में, जैसे न्यूमोनिक्स, हम लोग न्यूमोनिक्स पे डिस्कस किए, न्यूमोनिक बना हुआ है, इंस्टीट्यूट का जो भी आप आंसर लिखो सारे पैराग्राफ फॉर्म में लिखो। ऐसा नहीं है कि मतलब पैराग्राफ बोला पॉइंटर फॉर्म में, पैराग्राफ एकदम नहीं लिखना, पॉइंटर्स 5 मार्क का आंसर है, 6 से 7 पॉइंट लिख दो, मोर देन इनफ, वो भी शॉर्ट शॉर्ट में। तो मैं न्यूमोनिक्स फ्रेम करके रखा है, या जो भी पॉइंटर है, आई यूज टू राइट द आंसर अगेंस्ट दैट क्वेश्चन जितना शॉर्ट में हो सके पेपर में, वो 25-30 मिनट में। बट फिर वो जो 2.5 घंटा मेरे पास रहता था, उसमें मैं फटाफट आंसर लिख लेता, क्योंकि मेरे पास अब क्वेश्चन पेपर में मेरा आंसर शॉर्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद आंसर्स बनाने में तो हम सब एक्सपर्ट है ही, थोड़ा सा बस हिंट चाहिए, उसके बाद बाकी हम लोग बना लेंगे। एग्जाम चीटिंग में ऐसे ही होता है कि हाँ भाई थोड़ा सा हिंट दे दे, बाकी हम लोग बना लेंगे। तो वैसे ही है कि अब आप लोग को ये 15 मिनट रीडिंग टाइम मिल रहा है, प्लीज यूज दैट 15 मिनट्स वेरी अच्छे से एकदम, आई वुड से, क्योंकि इट्स यू ऑल आर रियली लकी दैट यू आर गेटिंग दैट 15 मिनट्स, स्पेशली इन पेपर्स लाइक कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का पेपर, ओपन बुक पेपर्स आर नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होते। मेरा खुद का, मैं इतने स्पीड में लिख रहा हूँ, मेरा हर पेज में राइटिंग चेंज होता था, इस पेज में कुछ राइटिंग है, उस पेज में कुछ राइटिंग है, इतना क्योंकि धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, कभी कभी लास्ट पेज तक पहुंचते पहुंचते तो मेरे को ही राइटिंग समझ में नहीं आता था, तो हो जाता था। एंड उसके बाद हो जाता, कभी कभी पेपर देख के लगता कि नहीं आ रहा है इसमें क्वेश्चन, तो उस केस में क्या, इंस्टीट्यूट का थोड़ा दे प्ले अ माइंड गेम ऑल्सो। पहला 4-5 क्वेश्चन ऐसा दे देंगे कि भाई दिमाग खराब हो जाएगा, क्या दे दिया, ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में था भी। पहला 2-3 क्वेश्चन देखो, नहीं आ रहा है तो हो सकता है इंस्टीट्यूट इज प्लेइंग अ माइंड गेम, पीछे से या बीच से चालू कर लो, बीच में इजी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इफ यू लूज द कॉन्फिडेंस थोड़ा दिक्कत हो जाता है, आप पेपर नहीं पूरा लिख पाते, आपको लगता है कुछ नहीं आता है। पहला 1-2 क्वेश्चन देखे नहीं आ रहा, स्किप, बाकी क्वेश्चन पढ़ो। तो आपको जब वो क्वेश्चन, आप वंस यू टेक द फ्लो, होता है ना, एक बार इंजन में थोड़ा वो ग्रीस डालने का, तेल डालने का जरूरत है, एक बार वो दिमाग के इंजन में वो हल्का सा तेल डल जाता है ना, लगता है कि हाँ आ रहा है, हल्का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, तो वो स्टार्टिंग का 2-3 क्वेश्चन भी आने लग जाता है। आपको नहीं आता तो भी बना दो, इंग्लिश पढ़ना आता ही है हम लोग सबको थोड़ा, तो उस इंग्लिश में जितने समझ में हम, तो होता था बहुत बार क्वेश्चन ही रिफ्रेम करके वैसे घुमा फिरा के एक्टिव पैसिव कर करके आंसर भर देता था। मेरे को इन्विजिलेटर को भी पता है तुम ये करने का ट्राई कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स देखो 0 ही देगा, बट यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। हो सकता है वो आंसर तुम्हारा थोड़ा सही निकले लॉजिक के वजह से, तो हो सकता है यू गेट मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। प्लीज अटेम्प्ट दैट। और आजकल तो पेपर पैटर्न और इजी और अच्छा कर दिया, यू हैव दैट 20 मार्क्स का एमसीक्यू ऑल्सो। तो हम लोग के टाइम पे एमसीक्यू नहीं था, हम लोग का, या तो हम लोग का होता था टैक्स का पेपर एमसीक्यू,
सबको लग रहा है बहुत इजी है, बहुत हार्ड होता था। एक एक पेज का तो क्वेश्चन होता था, उस एक मार्क का क्वेश्चन के लिए एक पेज, कैसे सॉल्व करें? इतना कुछ कुछ आता ही नहीं था, मतलब दे विल कंफ्यूज इन दिस मैनर। एमसीक्यूज आर आल्सो रियली डिफिकल्ट, नेगेटिव मार्किंग भी होते थे, बट वो 20 मार्क जो थ्योरी पेपर में 20 मार्क का एमसीक्यू आ गया ना, या तो आइदर राइट या आइदर रॉन्ग, उसमें इन्विजिलेटर मार्क्स काट के दिखा दे अगर सही हो तो, जीरो दे ही नहीं सकता आंसर सही है तो। So MCQ is very important. छोटा छोटा aspect they will try to ask, and it's when MCQ is scoring. मेरा होता था एग्जाम हॉल में, मेरे आई हैड a habit of leaving as soon as I completed the paper. मैं रिवीजन नहीं करता था, जो बहुत गंदा हैबिट है। पेपर वंस यू कंप्लीट यू शुड रिवाइज, गो थ्रू कि क्या कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया। तो मेरा एमसीक्यू पेपर में तो मेरा 1.5 घंटा में पेपर कंप्लीट होके मैं निकल के पहुंच जाता था। कुछ भी हो, 1.5 घंटा में पेपर कंप्लीट मेरा, 1 घंटा में हो जाता था, 1.5 घंटा पहले निकलने देते नहीं थे। ये एमसीक्यू इज स्कोरिंग एंड डजंट टेक टाइम। 20 मार्क, देखो 20 मार्क अटेम्प्ट कर रहे हो, गिन के 5 मिनट लगेगा, गिन के 5 मिनट, आपको 5 मिनट में 20 मार्क कंप्लीट हो रहा है। और ये अगर आपको 20 मार्क लिखना पड़ता है तो कितना टाइम लगता है? So your paper pattern is getting much more student friendly. Use that. Yeah, sir. It is actually pretty understandable that MCQ has actually made our papers easier. Hmm. Yeah, because first, the time constraint, we do get a lot of spare time for answering the theoretical questions. MCQs are little bit a do or die situation, I'll say, because you're either getting a 0 mark or you're getting a 1 mark. But if you're thoroughly reading the chapter, you can easily score. Yeah. तो हम लोग के टाइम पे लाइक देयर वर 3 पेपर कंप्लीटली एमसीक्यू। तो उस वक्त मेरे से कोई ये पूछता था कि एमसीक्यू में क्या करेगा, कुछ नहीं आता था, नहीं आता तो भी अटेम्प्ट कर दे क्या। आजकल तो 100% एमसीक्यू पेपर है ही नहीं आप लोग का। अगर 100% एमसीक्यू पेपर हो तो देयर आर 2 सिचुएशन। अगर आपको 80 मार्क का भी आपको लग रहा है कि आपको अच्छे से आता है, यू आर 100% श्योर ये सही है, बस वो 80 मार्क अटेम्प्ट करो, बाकी 20 अटेम्प्ट मत करो। उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वो ओएमआर शीट स्कैन होगा, ऐसे कैसे कोई चेक नहीं करने वाला, कंप्यूटर को क्या घंटा फर्क पड़ रहा है तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म से। बट वही अगर तुमको गिन के 10 क्वेश्चन आ रहा है पूरा पेपर में, जय माता दी कर दो, क्योंकि फेल तो ऐसे भी हो तुम, 10 का ही आता है तो 100% अटेम्प्ट कर दो, क्या जाता है। अब हालांकि वो बात अलग है, सबका किस्मत मेरे जैसा नहीं है, जय माता दी में भी हाँ, नहीं आ रहा है तो take it as a mock test. I was like, I had such a bad luck once in an MCQ paper. I was 50-50 choice I had in the question. इतना खराब लक था मेरा। 17 क्वेश्चन मैंने 50-50 में अटेम्प्ट किए, सोचा कि 50% भी सही हो जाए तो आई वुड बी इन गेनफुल पोजीशन, लाइक आई वुड बी गेनिंग ओनली, कि सही के लिए 1 मार्क मिल रहा है, गलत के लिए 0.25 जा रहा है। 17 में से अगर 8 भी सही हुआ तो मेरे को 8 मार्क तो मिल गया, बाकी 9 का थोड़ा सही तो जाएगा। इतना गंदा लग, 17 का 17 रॉन्ग निकला 50-50 में भी। तो होपफुली एनीवन डजंट हैव दैट काइंड ऑफ लक। तो अटेम्प्ट कर लो अगर 10 मार्क का, वैसा मतलब 10 मार्क का ही आता है। अब तो 100% एमसीक्यू है भी नहीं। एंड थ्योरी पेपर में आई डोंट थिंक सो कि नेगेटिव मार्किंग, आई एम नॉट 100% श्योर कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अटेम्प्ट तो कर दो यार, 20 मार्क कहीं सही भी हो जाए तो आपको मार्क्स ही मिल रहे तो जा Mainly तो in गया। MCQs. हम्म। Yeah. So this conversation was very enlightening. Thank you so much, because we Yeah. as students really required these Yeah. opinions and guidance. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे वैसे। Yeah, sir. Actually, हाँ। we covered most of the questions, and due to time constraint, I'll request them to kindly message on the group. या मेरे पास ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस आ रहे हैं। I received some anonymous messages also. Let's not get into that. Yeah, तो हाँ, I was telling कि लॉ का मैं एक चीज बोल रहा था कि लॉ का एस्पेक्ट में सी प्लेइंग विथ वर्ड्स इज रियली रियली फन। लॉ में बहुत मजा आता है, क्योंकि लॉ में देखो आपको ना इंटेंशन समझना होता है। रीडिंग लॉ, अंडरस्टैंडिंग लॉ, दीज आर रियली फन। सीएस में भी लॉ बहुत ज्यादा है, आपको एक एक वर्ड को समझना होगा, हाउ यू कैन यूज देम।
As a lawyer also, I would say, मेरा एक रिसेंटली इंटर्नशिप में एक केस कर रहा था। सिर्फ करोड़ों का मैटर था, इतना करोड़ का फ्रॉड था, फिर 850 करोड़ रुपए के करीब का फ्रॉड होगा। सो बेसिक्स में जो एकदम इन सच केस क्या करते हैं हम लोग, एकदम शुरुआत से शुरुआत करना होता है। गवर्नमेंट ने मेरे को नोटिस दिया, उसी पे क्वेश्चन उठा दो, नोटिस ही गलत था। अब वो नोटिस गलत कैसे आपको बताना होगा कि आपने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया, वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया, आपका पूरा केस इज नॉट मेंटेनेबल। These are all really good because you have to use the words very carefully. एक वर्ड से आप पूरा केस को बदल सकते हो। एंड पर्सनली लाइक आई, हो सकता है फ्रॉड हो, बट हजारों लाइक वो 850 करोड़ में से 450 500 करोड़ का फ्रॉड ऐसे ही हटा दिया। आई कैन प्रूव दैट कि ये फ्रॉड नहीं है, इवन इफ इट माइट बी फ्रॉड, बिकॉज एज अ लॉयर आई हैव टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट। जो भी हो, सही है गलत, दैट सेकेंडरी, एवरीवन हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड। बट तो उस मामले में इट्स हाउ यू प्ले द वर्ड। कभी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, सबको पता है कि ही हैज डन दैट थिंग, बट फिर भी वो छूट जाता है। व्हाई? बिकॉज ही हैड सच अ गुड लॉयर दैट ही कुड प्रेजेंट हिज केस इन सच अ वे कि जज को भी यही बोलना पड़ा कि भाई तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज द आर्ग्यूमेंट्स वर सो गुड। यू हैव टू यूज द वर्ड्स वैसे। वही एग्जाम में भी यू मस्ट बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल and you must throw everything which you can in those words. सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलता है 20 सेकंड्स में, अगर आप 20 सेकंड में अपना केस का नहीं बोला, आपका केस डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि इतने केसेस रहते हैं। तो आपको कम टाइम में सबसे ज्यादा अच्छा क्वालिटी मैटर बोलना उस कम टाइम में। तो एग्जाम्स में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। तो इट टेक्स लॉट ऑफ थिंग कि आपको एट द एंड यही हो जाता है, लर्न करने के लिए मत जाना कभी भी एग्जाम्स में, बिकॉज दैट वोंट हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ। अगर आप चीजें समझ के पढ़ रहे हो तो दैट विल रिमेन विथ यू फॉर एवर, एंड आप लोगों को भी समझा सकते हो, चाहे खुद को भी समझा सकते हो कि हाँ ऐसे हुआ। लर्न करने बैठोगे, भूल जाओगे थोड़े दिन में। Yes, that's actually true, I'll say. Thank you so much, sir. The session was very wonderful. And I guess audience is also satisfied. We have taken maximum 99% queries. If the audience is still having any queries, kindly drop a message and sir will definitely reply. Yes. And you all can also like message me on LinkedIn, Insta, anywhere. I will try to address the question. You all can raise your questions with them. They will forward it to me. I am willing to help each and everyone. Though delays might be there because मेरे से reply करने में बहुत हालत खराब होता है। तो yes, but अगेन इस सेशन में भी आई वुड से कि बहुत जन का माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये तो फालतू सा क्वेश्चन है, क्यों ही पूछे, people will judge me or something. If that is the thought, please avoid that and ask your question. Because none of the question is faltu. Some can like it can be very helpful. We should not be like मतलब वही हो जाता, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलना होगा लोगों को। You need to take steps. No, sir, I absolutely agree. And I think if somebody is pursuing CS or any course, sorry, CA, CMA, he or she might not, he or she will definitely not judge you. We all are pretty relatable. We just need to reach where you are now. And as a professional, you should have you should have a question in mind. Hmm. The professional skepticism, the aspect audit ये सब में बहुत पढ़ाया जाएगा CA में स्पेशली। तो होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड रहना ही चाहिए, हर चीज में क्वेश्चन करो। Thank you so much, sir. I would now like to hand over the mic to Shifa. Indeed, a wonderful session. I would like to extend a heartfelt vote of thanks to all of you present here. First and foremost, I, on behalf of CASMA, would like to extend our gratitude and appreciation to Mr. Chirag Agrawal for his invaluable contribution in conducting today's engaging and enriching session. We are truly fortunate to have had the privilege of his expertise and insights, which have undoubtedly left an indelible mark on everyone. Thank you so much, sir.
Before we conclude today's event, I, Shifa Khan, core member of CASMA on behalf of the Commerce Department of Mata Sundari College for Women, would like to give a formal vote of thanks. I express deep gratitude to all those who contributed to this seminar's success. I would like to highlight the immense support from our principal, Professor Harpreet Kaur. She gave us innumerable opportunities to learn and excel. Thank you so much, ma'am, for your support. I would like to thank Professor Lokesh Kumar Gupta, the Director of IQAC, for their continuous guidance and support. Heartfelt gratitude to our teachers, Dr. Manpreet Kaur, the Secretary of CASMA, Dr. Harshmita Kaur and Ms. Kamna Virmani, the esteemed members of CASMA, for their efforts, time, and patience. Lastly, thanks to Team CASMA for their role in making this event a success, and also to all the students for their sincere participation in this webinar. With this, I conclude today's session. I would request all of you to please fill the feedback form. Your input matters to us. I would also request everyone to please stay back for pictures. Thank you. Yeah, thank you everyone for tolerating the event session so long. या तो हो जाता बीच बीच में बहुत सेशन ये सब बोरिंग हो जाता हम लोग पर्सनली ऑनलाइन स्पेशली ऑनलाइन मोड में बहुत बोरिंग होता हम लोग ने खुद काफी सेशन अटेंड नहीं किए ऑनलाइन क्योंकि उसमें वो पर्सनल टच नहीं आता है जो ऑफलाइन इज ऑफलाइन जितना भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए ऑफलाइन में वही मजा आता है एंड या वन रिक्वेस्ट प्लीज आई शुड हैव करेक्टेड इट अर्लियर प्लीज मेरे को सर मत बोलिए आई एम जस्ट एज यंग एज यू ऑल so, and normal you all can call me Chirag. No need to call sir and all. It's it's very tough to call you by name. Okay. Okay, thank you so much, Chirag. This session was actually very enlightening, and please don't think that we were tolerating you. It was very valuable, trust me. I am giving my own individual personal opinion. I am also preparing for a qualifying exam, and this session was actually must needy in these times. Yeah. And also thank you Samriddhi for coordinating the entire session. And it's really tough, especially in online mode, I would say, to coordinate everything, say, the session, and it takes a lot of courage. If I had been the Chirag of 5 year or 6 year back, I would have never even got the courage to even speak or coordinate a session. It really takes a lot of courage. So congratulations for that. Thank you so much, sir. Looking forward for more webinars with you. Yeah, indeed. And actually meeting you in offline. We would all love to meet you. Yeah, it would be my pleasure. Thank you, sir. I would request for the photographs, please. I've got it. Thank you. Yeah, so should I leave? Thank you so much. Thank you, Chirag, for answering the queries in much politer and with so much of patience. Thank you so much. Thank you, ma'am. Students can now leave. Thank you so much for your contribution to this successful webinar. I hope you all enjoyed. Thank you.